Assalamu alaikum. Uh, Welcome to the black hole. And today the most difficult part is because we don't have Afaq Nair with us. He's not feeling well, so I have to introduce myself as well as to the program. You can see the title. It is Mastering Research Proposal and Paper Writing, a step-by-step guide. And I am Dr. Saeed Ahmad Rid. I teach at Quaid-e-Azam University, Islamabad, in National Institute of Pakistan Studies. I have my PhD in Peace and Conflict Studies. So today we will be talking about research proposal and research paper. First of all, I would like to thank Black Hole and Afaq Nair for agreeing this program, because I thought this is important to have this, because as we know that we have very good facilities here to record this, which will be available for the students afterwards as well. So I mean, I have been teaching this course at Quaid-e-Azam University for like 10 years, but I thought this is more important to reach out to other students in BS, MPhil, and PhD. While teaching MPhil, PhD students and supervising them, I thought this is something which is, I mean, we obviously have problem with the research methodology, but even within research methodology, this part, especially research proposal and research paper writing, is the most important part and the most difficult part as well. And as I have noticed, even at the PhD level, when students come, they have problem with this. So that's why I thought that we should do this, and it should be recorded so that it is available to the students. One more thing before starting, I would like to say that because while teaching, and supervising MPhil PhD, I realized that I mean this research proposal, which is basically the first chapter of your MPhil thesis or PhD thesis. If there must be some students from MPhil and PhD here, then they can understand that when you write introduction chapter, that is basically your research proposal chapter. So I always say to my students, especially to MPhil students, that this is your half thesis actually, because the other half is just this provides you the structure, and then the rest of the chapters basically add up. So this is the most important part. So that is why I thought this is really important to have a discussion on this. And a research paper, I mean, tried to do both together because there is so much common between them. I mean, between research proposal and research paper writing. So that is why I thought we can do it together. And the other reason for this was that whenever we, do a PhD, etc., we will have to write research papers as well. So just doing one thing was not enough. So that I thought I could combine them together so that it is more useful for the students. So please, can you have slides on? अच्छा, लैंग्वेज हम उर्दू और इंग्लिश दोनों को मिक्स करेंगे ताकि आपके लिए और सबके लिए थोड़ा सा आसान रहे. Okay, so here is a bit of my introduction, which you can see, and can you move on the slide? Well, when we start our research, obviously the first thing which come up is selecting your research topic. And this is something which I have realized while doing my, while teaching, that students come up again and again that suggest some topic and give us some good topic on, because I teach international relations and peace and conflict studies. So students from political science and international relations always come up and ask about giving some topic. Now this is where the problem is. यानी ये कि भाई आप टॉपिक मेरे हिसाब से अगर किसी से आप मांगते हैं तो यहीं पे प्रॉब्लम आपका स्टार्ट है, क्योंकि टॉपिक तो स्टूडेंट को लेके आना होता है और उसी पे फिर बात होती है और उसी को फिर रिफाइन करने की बात है. तो और उसमें एक और बात जो कि एक लगी रहती है कि वो फैशनेबल टॉपिक्स, क्योंकि हम लोग उसके पीछे रहते हैं कि कौन सा टॉपिक है जो कि अभी हार्ट एरिया है, जिस पे हर कोई रिसर्च कर रहा है. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि हमारे फील्ड में CPEC पे बहुत से लोग उस पर लिखना चाहते हैं, हर कोई उसको एक तरह से लाइक करता है. तो इसमें फर्स्ट थिंग विच आई वुड से इज़ द टॉपिक शुड बी ऑफ योर चॉइस. स्टूडेंट शुड कम अप विथ टॉपिक and it should be close to your heart.
यानी आपने ये नहीं सोचना कि ये किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। असल चीज़ ये है क्योंकि वो टॉपिक आपकी प्रॉपर्टी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड बी क्लोजेस्ट टू योर हार्ट, जो आपको अच्छा लगे। और टॉपिक पे डिस्कशन जब भी होगी तो यू शुड कम अप विथ वन टॉपिक, नॉट मोर देन वन, क्योंकि फिर सीरियस डिस्कशन हो नहीं सकती। सो ऑब्वियसली यू शुड कम अप विद द टॉपिक विच यू रियली वांट, और जो कि आपके सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो, उसी टॉपिक पे करें। और इसमें क्योंकि टॉपिक इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर एंड योर फील्ड एंड एवरीथिंग, तो इस वजह से उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च थोड़ा सा पहले, यानी ये टॉपिक सिलेक्शन इज़ नॉट समथिंग जोक, ये बहुत सीरियस चीज़ है। और स्पेशली जो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम लगता है उसमें, एंड दे शुड टेक इट टाइम, आई मीन अ फ्यू मंथ्स एट लीस्ट, ताकि उस पर वो थोड़ा सा गौर करें, उस पर सोचें और उसके देखें प्रोज एंड कॉन्स। और उसके अलावा क्योंकि आपके फ्यूचर में करियर के हवाले से भी आपके वो टॉपिक आगे चल के आपके यूज़ में रहेगा, तो इस वजह से उस टॉपिक के बहुत से जो है साइट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये स्पेसिफिकली यू शुड नैरो इट डाउन फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, क्योंकि ये भी एक कोई प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के साथ कि कहाँ से स्टार्ट करें थॉट प्रोसेस। सो थॉट प्रोसेस ऑब्वियसली शुड गो फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यानी फील्ड आप थोड़ा सा डिसाइड कर लें, आपका मल्टी डिसिप्लिनरी है तो उसमें से आप उस फील्ड को डिसाइड करने पर नीचे आते जाएं और उसको जितना स्पेसिफिक कर सकते हैं दैट इज़ मोर यूज़फुल फॉर यू। और उसमें एक और बात कि टॉपिक सोचते वक्त एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट पॉइंट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डू ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू टू इंश्योर मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन इज़ पॉसिबल, क्योंकि यानी टॉपिक आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप कुछ ना कुछ नया कर सकें। यानी अगर टॉपिक आपका ऐसा है जिसमें कोई पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल है एंड देयर इज़ नो ग्राउंड टू डू समथिंग, टू ब्रिंग समथिंग न्यू, स्पेशली क्योंकि आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं और नवाइस हैं, न्यू एंट्री है आपकी, तो आप अगर फॉर एग्जांपल ऐसा टॉपिक लेते हैं जिस पे बहुत से बड़े बड़े कोनामक्ष राइटर पहले से लिख चुके हैं, तो शायद आप उस पर कोई अच्छी कंट्रीब्यूशन ना कर सकें। तो इस वजह से आपको चाहिए कि टॉपिक ऐसा लें जिस पे काम कम हुआ हो, जहाँ पे ग्राउंड हो आपके लिए उसमें कुछ ऐड ऑन करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको डिटर्मिन करने के लिए कि आप वाकई वहाँ आपके पास कोई ग्राउंड उसमें मौजूद है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, जो कि आपने अपने सुपरवाइज़र के साथ आपको फिर वो बात करके और उसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो उसका कम से कम एक कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू टॉपिक सिलेक्शन के वक्त बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो भी टॉपिक देखें उस पर ज़रूर देखें कि उस पर पहले से लिटरेचर अवेलेबल है कि नहीं है, और किस तरह का लिटरेचर अवेलेबल है, और उसमें ये पॉइंट कि आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। जी नेक्स्ट स्लाइड। जी अच्छा, टॉपिक सिलेक्शन के बाद अगर रिसर्च पेपर और उसमें देखें तो जो रिसर्च प्रपोजल में एब्स्ट्रैक्ट कंपलसरी नहीं है, यानी ये आपकी चॉइस है, आप दे सकते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट ऑब्वियसली एक कंपलसरी पार्ट उसका होता है और उसमें आपको बहुत ज़रूरत उसकी पड़ती है। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से और एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज़ है, ये भी एक बहुत बड़ा एक जो है वो एक तरह से उसके ऊपर बहुत से आइडियाज़ हैं। लोग उसको समझते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ समरी ऑफ योर पेपर ऑफ योर प्रपोजल, तो उसमें आई वुड से कि एब्स्ट्रैक्ट इज़ नॉट जस्ट अ समरी, यानी उसको अगर आप समझते हैं कि सिर्फ समरी ही है तो ये उस तरह से नहीं है। उसका मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि मेरे हिसाब से जो एब्स्ट्रैक्ट है वो समरी से ज़्यादा एक तरह की आप उसको देख लें कि आप एक एडवर्टाइजमेंट, जिस तरह से आप शैम्पू बेचते हैं तो शैम्पू बेचते वक्त आप उसमें इस तरह की चीज़ें बताते हैं ताकि जो ख़रीदने वाला है उसको ख़रीदे आपकी एडवर्टाइजमेंट देख के। तो ये इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि जो आपको पता है कि जो मोस्टली आप इवन जाएं सर्च इंजन में तो आपको बहुत से आर्टिकल्स कंप्लीट नहीं मिलते, आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मिलता है। तो एब्स्ट्रैक्ट से ही आप अंदाज़ा लगाते हैं कि उसको आप परचेज़ करें या उसको आगे आप पढ़ें या ना पढ़ें। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्वियसली इज़ समथिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिसर्च, ताकि आपकी रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको उनको अट्रैक्ट करें। तो उसको अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एक जो है एब्स्ट्रैक्ट का सिंपल एक ब्लैंड सा जो है वो समरी इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से, कि यानी आपको जहन में रखें कि इसमें जो है आपने उसको अट्रैक्टिव बनाना है और आपका जो ये पार्ट है ये आपका फेस है।
जिसको देख के लोग आगे उसके तरफ जाएंगे। क्योंकि मोस्टली जो है वो अब ये तो आप देखें हर किसी की जो ख्वाहिश होगी कि उसकी जो रिसर्च है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अट्रैक्ट हों और पढ़ें। तो इस वजह से उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसमें ही जो है लोग डिसाइड करते हैं। अब उसमें जो लेंथ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है वो भी एक तरह से डिफरेंट वेरी करती है, यानी 150 to 250 वर्ड्स मोस्ट प्रॉबली होती है, बट दैट डिपेंड्स ऑन फॉर एग्जाम्पल काल्फा पेपर्स आपने देखे होंगे, कहीं पे 300 वर्ड्स भी कहते हैं, कहीं पे 250 वर्ड्स की बात होती है, कहीं पे 150 वर्ड्स की बात होती है। तो जो भी आपको लिमिट दी जाए आपने उस लिमिट में रहते हुए एब्स्ट्रैक्ट को लिखना है। और उसमें कुछ कहीं पे जो आप काल्फा पेपर्स देखते हैं कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं कि 150 250 वर्ड्स और उसमें क्या क्या उनको चाहिए, तो वो आपने ज़रूर उसको नोट करना है कि एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर ही आपको कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाता है, आपकी टिकट्स आपका सब कुछ पे किया जाता है। तो इस वजह से एब्स्ट्रैक्ट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि आप जब देखें काल्फा पेपर्स में होता है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं, पूरा पेपर आपसे नहीं मांगा जाता, और इसी के ऊपर डिसाइड होता है कि आपको टिकट दे के बुलाया जाए कि ना बुलाया जाए। तो इसकी वजह से इसको बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। और एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखना जो है एक थोड़ा सा फ़न है, उसको सीखने के लिए आपको अच्छे एब्स्ट्रैक्ट्स को पढ़ना चाहिए पहले, ताकि आपको आइडिया हो कि एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, उसमें अब आप फॉर एग्जाम्पल देखें कि एन एब्स्ट्रैक्ट लेट्स रीडर द जिस्ट और सेंजे, तो वही रिपीटेशन एक तरह से है। अच्छा, इसमें एब्स्ट्रैक्ट के एंड में आप देखें कि कीवर्ड्स भी दिए जाते हैं। आपको बेसिकली 5 कीवर्ड्स अलाउड होते हैं। अब इसमें कीवर्ड्स की जो सिग्निफिकेंस है वो भी समझने की ज़रूरत है कि क्यों कीवर्ड्स। और आपने नोट किया होगा कि ये अगर आप पीछे चले जाएं 10 साल 20 साल पीछे, तो कीवर्ड्स नहीं होते थे। ये एक रीसेंट फिनोमेना आपने रिसर्च पेपर्स में देखी होगी। उसका जो लिंक है वो हमारे डिजिटलाइजेशन के साथ है, क्योंकि अब जो है वो आपको पता है कि रिसर्च जो है वो भी डिजिटल एज में दाखिल हो चुकी है। तो आप सर्च इंजन पे आपको सब कुछ अवेलेबल होता है। तो ये बेसिकली सर्च इंजन में ही ढूंढने के लिए, ताकि आपका जो कीवर्ड्स होते हैं, आप बेसिकली जो सर्च इंजन हैं, जो भी जे स्टोर है, गूगल है, जो भी, वो क्या करते हैं कि वो आपका जो टाइटल ऑफ द पेपर और आपके कीवर्ड्स वो उनको दिए जाते हैं, उससे वो आपके जो है वो पेपर तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली आप चाहते हैं, यानी हर कोई चाहेगा कि उसके कीवर्ड्स ऐसे हों जो कि अट्रैक्ट करें, जहां से वो रेलेवेंट लोग उसके पेपर तक पहुंचे और फिर वो उनके एक्सेसिबल हो। तो इस वजह से कीवर्ड्स को पिक करना आपके लिए बहुत जो है वो एक यानी स्ट्रेटिजिक थिंकिंग इसके पीछे ज़रूरी है। और वो थिंकिंग क्या है, एक तो ये जहन में रखें कि आपका जो यानी टॉपिक है वो शामिल होगा सर्च इंजन में, तो जो सर्च इंजन में जो वर्ड्स आ चुके हैं उनको दोबारा रिपीट ना करें, क्योंकि आप दोबारा रिपीट करेंगे यानी आपके जो 5 वर्ड्स की लिमिट है आप उसको यूज़ कर रहे हैं और उसको बेसिकली वेस्ट कर रहे हैं। तो आप उसको वेस्ट करने के बजाय न्यू 5 वर्ड्स जो कि ऊपर नहीं है उनको इधर शामिल करें, ताकि आपका जो पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो ये जो की वर्ड्स हैं बहुत ही स्ट्रेटिजिक थिंकिंग के साथ उनको पिक करना चाहिए। उसमें एक और बात कि उसमें कोशिश करें कि आप उसकी जो फील्ड है, जिस यानी जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है वो किस फील्ड में फॉल करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस फील्ड के लोग जो कि उससे डायरेक्टली लिंक हैं उन तक वो चीज़ पहुंच सके। तो उसके यानी वो जो अराउंड वो जो कौन से डिस्कशन उसमें हो रहे हैं जो कि आपके टॉपिक में कवर्ड हैं, और कौन सी फील्ड्स और एरियाज ऑफ स्टडीज़ आप कवर कर रहे हैं, वो बेसिकली पिक करनी है आपने कीवर्ड्स में, 5 कीवर्ड्स में। तो 5 कीवर्ड्स का ये पर्पस बेसिकली है। जी नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें बेसिकली पूरी डिटेल आपको दी गई है कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें डाली जा सकती हैं, और उसमें फॉर एग्जांपल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फॉर योर रिसर्च, द जनरल टॉपिक अंडर स्टडी, ये बहुत सी चीज़ें आप उसको पढ़ सकते हैं जिसमें इसमें लिखा गया है। अच्छा, इसमें पॉइंट इज़ बेसिकली इट इज़ अप टू यू, यानी ये पूरे के पूरी सारी की सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। 250 वर्ड्स आपकी लिमिट है, सो यू कैन नॉट पुट एवरीथिंग इन दिस, बट दिस इज समथिंग टू गिव यू एन आइडिया कि ये सारी चीज़ें आपके पास चॉइस है कि यू कैन पुट सम ऑफ देम और ऑल ऑफ देम, इट इज़ अप टू यू। और उसमें यह है कि आप किस तरह से उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। आप उसमें रिसर्च मेथड्स
बता सकते हैं। अगर रिसर्च मेथड में आपने फॉर एग्जांपल जो है वो कोई बहुत अच्छी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड वर्क आपने किया हुआ है, तो यू शुड इन्फॉर्म द रीडर सो दैट दे आर अट्रैक्टेड कि बहुत अच्छी फील्ड वर्क पे ये रिसर्च बेस्ड है। आपने कोई नई ग्राउंड ब्रेक की है जो कि पहले किसी ने नहीं किया है, तो यू मस्ट टेल द रीडर अबाउट दैट। तो आपने वो पिक करना है कि वो कौन सी चीज़ें उसमें हैं जो कि रीडर को अट्रैक्ट करेंगी, और वो चीज़ें जो है वो आपने आपके जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं, बट यू कैन पिक द थिंग्स विच यू लाइक, और जो कि आप समझते हैं कि आपके जो है वो रीडर के लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो ये काफ़ी, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही स्ट्रेटिजिक थिंकिंग के साथ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे जो है वो आपकी पूरी जो है वो उसकी जो सेल जिस तरह से होती है चीज़, उस तरह की चीज़ है कि आपका जो ये प्रोडक्ट है जो कि आप एक पेपर बनाते हैं वो फिर लोगों तक कैसे पहुंचेगा, उसको आपका जो फेस है वो एब्स्ट्रैक्ट होगी। तो इस वजह से एब्स्ट्रैक्ट को इस ये सिग्निफिकेंस उसकी है। और ये थीसिस में भी आप अप्लाई करेंगे, थीसिस आप ज़रूर लिखेंगे तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट आपके लिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। एमफिल की थीसिस हो या पीएचडी की थीसिस हो। रिसर्च प्रपोजल्स जो है उसमें कोई एज सच हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन कभी मांगा जाता है, तो दैट डिपेंड्स। लेकिन जो रिसर्च पेपर है उसमें एब्स्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी होता है। जी आगे चलें। अच्छा जी, राइटिंग द इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसमें जो है वो इंट्रोडक्शन के हवाले से थोड़ा सा हमारे यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट में पाई जाती है कि जब उनको कहा जाए कि इंट्रोडक्शन लिखें अपने रिसर्च यानी पेपर का या आपकी जो थीसिस है उसका, तो उसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर जिसको हम कहते हैं राम कहानी शुरू करते हैं, यानी एक ज़माने का जिक्र था और इसको स्टार्ट करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने टॉपिक पे आते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप जो रीडर है आपका, उसने टाइटल देख के और जैसे ही वो इंट्रोडक्शन पे आएगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उसको बताएंगे अपने टाइटल के बारे में और उसको क्लैरिफाई करेंगे कि टॉपिक आपका क्या है। तो यू शुड डायरेक्टली कम टू द टॉपिक, मेक श्योर दैट रीडर्स नो इन द फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस व्हाट योर प्रोजेक्ट इज़ अबाउट, यानी डायरेक्टली उस पर बात करें, आप टाइम वेस्ट ना करें। और अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो भी एग्जामिनर है, आपका जो रीडर है, उसके पास टाइम बहुत कम है और उसने डिसाइड करना है कि इसको आगे लेके जाना है कि नहीं जाना है, इसका मैंने आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। रीडर है तो ये डिसाइड करेगा, अगर एग्जामिनर है तो ये डिसाइड करेगा कि उसको ग्रेड देना है क्या देना है। तो ये इनिशियल जो फर्स्ट यानी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिस तरह से आप देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वहीं पे आपकी कहानी ख़राब और अच्छी होती है। इस वजह से इंट्रोडक्शन को बहुत केयरफुली लिखने की ज़रूरत होती है कि आपका जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, वो उसको अट्रैक्ट हो और वो जो चाहता है वो चीज़ उसको मिले, और वो ये चाहता है कि वो आपका जो टाइटल है उसकी एक्सप्लेनेशन उसको चाहिए, और आप उसको वो नहीं दे रहे हैं, उसको वेट करवा रहे हैं, आप इधर उधर की कहानियाँ उसको सुना रहे हैं, तो उसका जो है वो गुस्सा बढ़ता चलाएगा आपके ऊपर, और इसकी वजह से फिर आपको वो अफेक्ट करेगा आपके ग्रेड्स पर, आपके जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी पर। इस वजह से जो है वो ये बात कि जो फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस में आपने उसको बताना है कि व्हाट इज़ अबाउट। अच्छा, दूसरा ये इंट्रोडक्शन जो है वो आपके पेपर का है, यानी आपका पेपर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना। आपने अपनी फील्ड को, एरिया को, उसको सारे को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। आपने बेसिकली क्लेरिफाई करना है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ योर स्पेस, इन स्पेस रीजन कौन सी है, कंट्री, टाइम, डेट्स, ये सारी क्लेरिफिकेशन पेपर की आपने बतानी है कि कहाँ से कहाँ तक आप कवर कर रहे हैं, कौन सी रीजन की बात करें। इसमें से कुछ चीज़ें लाजमन आपके टॉपिक के टाइटल में क्लियर होंगी, अगर टाइटल में कुछ क्लियर नहीं है तो फिर यहाँ पे उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। आपके पास दोबारा से मौका है कि आप रीडर को बताएं कि आपका जो टॉपिक है कौन से एरिया को कवर करता है, कौन सी डेट्स को कवर करता है, उसके पैरामीटर्स इन स्पेस क्या है। द मेन पर्पज ऑफ द इंट्रोडक्शन इज़ टू प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, दूसरा, पहली जो पैराग्राफ है यानी जो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन की है, उसमें मेरी सजेशन ये होती है कि आप थोड़ा सा उसमें कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करें, यानी उसमें आप इंटरेस्ट बिल्ड करें स्टूडेंट का यानी रीडर का, जिसमें बेसिकली आप ये जो आपका जो असल टाइटल है उस पे आने से पहले थोड़ा सा एक ग्राउंड, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव हो और वो जो है उसकी तवज्जो भी उसकी तरफ मबजूल हो। तो इस वजह से वो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग, और ट्राई टू प्लेस योर रिसर्च क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईदर करंट हार्ट। अच्छा, इसमें करंट हार्ट एरिया की पॉइंट ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई हिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं और कोई इवेंट जो है 8th सेंचुरी BC में हुआ है या फिर AD में हुआ है, 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 15th सेंचुरी का इंसिडेंट है, अभी 2024 में आप बैठे हैं,
तो उसको अगर आप कनेक्ट नहीं करते 2024 के साथ, तो रीडर के लिए उसकी यूटिलिटी उस तरह से नहीं है। तो इस वजह से उसकी यूटिलिटी डिस्क्राइब करने के लिए इसी इंट्रोडक्शन में, अगर आपका टॉपिक बहुत ही पुराना है तो उसको कनेक्ट करना प्रेजेंट के साथ बहुत ज़रूरी है, ताकि वो फिर जो है उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो सके। और उसको क्योंकि आप, और ये हर टॉपिक के साथ किया जा सकता है कि उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने जो है वो उसके साथ। प्रोवाइड अ ब्रीफ अप्रोप्रिएट हिस्टोरिकल बैकड्रॉप, यानी उसका, अच्छा ये भी देखें, हिस्टोरिकल बैकड्रॉप का मकसद ये है कि आपको जो अगर टॉपिक बिल्कुल करंट है तो उसको फिर हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करना, ताकि वो जो एक लिंक हो वो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में बहुत यूज़फुल होगा, ताकि लोग ये समझ पाएँ कि ये जो चीज़ें ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता ना, तो जो भी टॉपिक होगा उसके ज़रूर बैकग्राउंड होगा। तो बैकग्राउंड यहाँ पे आपने उसका जो है वो डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, ताकि वो फिर करंट के साथ लिंक हो सके। तो ये दोनों कंडीशन में, अगर वो बहुत पुराना है तो उसको करंट के साथ लिंक करना है, अगर बहुत न्यू है तो फिर उसको हिस्ट्री के साथ लिंक करना। ये पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोवाइड द कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट इन विच योर प्रपोज रिसर्च ऑक्यूपाइज द सेंट्रल स्टेज, यानी ये बेसिकली आपने अपने आर्ग्यूमेंट में दिखाना है कि किस तरह से जो आप जो भी बात कर रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और रीडर क्यों पढ़े उसको, और हाउ दैट बिकम्स सेंट्रल स्टेज इन द डिस्कशन। जो डिस्कोर्स चल रहा है मीडिया पे, एकेडमिया में, उसमें वो कहाँ पे प्लेस करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें होता है। जी नेक्स्ट चलें। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये एक और चीज़ है जिसमें स्टूडेंट काफ़ी जो है वो कंफ्यूज मुझे नज़र आते हैं। उसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि मोस्टली जो है वो इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रिपीटेशन हो रही होती है। वही चीज़ जो कि इंट्रोडक्शन में थी, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप देखें, आपने भी नोट किया होगा कि बहुत सिमिलरिटी इसमें है। इसमें असल में ओवरलैप थोड़ा सा है भी सही, और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा इसमें ओवरलैप कर जाते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम इसमें होता है। इसमें इसका पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और इसका पर्पज़। अच्छा, ये एक और बात इसमें बताऊँ आपको। फॉर एग्जांपल, आप फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, मास्टर्स वगैरह के लिए, तो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज़ रिक्वायर्ड होता है। आपने देखा होगा ये बहुत से, यानी अगर रिसर्च प्रपोजल नहीं भी मांगा जाता तो ये वाली चीज़ मोस्ट प्रॉबली आपसे मांगी जाती है एप्लीकेशन, जब भी आप अप्लाई करते हैं फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए या किसी एप्लीकेशन, इवन एडमिशन के लिए एमएस प्रोग्राम में या कहीं पे। तो उसमें बेसिकली आपसे क्या मांगा क्या जा रहा है, उसमें यह है कि आपका जो भी टाइटल है, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसको प्रॉब्लमेटाइज करना। प्रॉब्लमटाइज करने का मकसद ये है कि आपने वो कौन सी फिनोमेना है, कौन सा प्रॉब्लम है जिसने आपको मजबूर किया है कि आप इस टॉपिक पे रिसर्च करें, उसको क्लेरिफाई करना कि वो कौन से डोमेन उसका क्या है, उसके एंगल्स क्या हैं, उसमें किस तरह का डिस्कशन, किस तरह का डिस्कोर्स एकेडमिया में पहले से मौजूद है, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लोरेबल हैं, जिन पे जो है वो रिसर्च की जा सकती है, और कौन से ये जो है वो किस तरह से एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसको एक पजल है जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है और जिसके लिए हमें रिसर्च की। तो एक पजल मेकिंग का पार्ट है ये वाला पार्ट, जहाँ पे आपने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना है। यानी आप अपने जो टॉपिक है उसके अराउंड उसको बताना है कि ये किस तरह से एक प्रॉब्लम है, एक मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है, और वो उसमें क्या, कौन से एंगल्स हैं और किस तरह से। तो ये इसका जो पर्पज़ है वो ये है। Provide the context and set the stage for your research question in such a way as to show its necessity and importance. यानी ये आपका स्टेज सेट करेगा आगे जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस आने हैं, और उसमें क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चंस रेज करेंगे और उनमें से फिर कोई क्वेश्चन आप उठा के और उसको रिसर्च क्वेश्चन में डालेंगे, तो यहाँ पे यानी आप एक स्टेज बनाएंगे अपने रिसर्च क्वेश्चंस के लिए और अपनी रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर हल उसका बाद में आपके उसमें आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लमटाइजेशन पार्ट, ये इस वजह से इसको जो है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहा जाता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यानी पार्ट आपकी जो है रिसर्च प्रपोजल का होता है। ब्रीफली डिस्क्राइब मेजर इश्यूज एंड सब प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस्ड बाय योर रिसर्च। तो उसकी कौन सी डोमेन्स हैं, कौन से सब एरियाज हैं जो कि इसमें हैं, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। जी नेक्स्ट, थ्योरी। अच्छा, ये भी एक और पार्ट है जो कि हमारे हाँ यानी एक आपने नोट किया होगा कि ये भी कभी कभी होता है कि थीसिस पूरी लिख दी जाती है और फिर कोई आके वो एग्जामिनर बताता है कि इसमें थ्योरी तो नहीं थी, आपने थ्योरी वाला चैप्टर डालना है। ये भी मैंने नोट किया, बड़ा अजीब सा पाकिस्तान में ये सीन चलता है कि थीसिस पूरी लिख दी गई
और फिर आके सुपरवाइज़र ने कहा कि ओहो थ्योरी तो इसमें है ही नहीं, तो थ्योरी तो इसमें डालें। और फिर वो थ्योरी जिस तरह से हमारे यहाँ वो होता है ना, लाहौर में गाड़ी वो कराची से आती है तो लाहौर में एक डब्बा उसको डगा देते हैं, तो इसी तरह से एक डब्बा जो है वो एक चैप्टर उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से कम्प्लीटली एक अजीब सी चीज़ है। अगर आपने रिसर्च जो है वो करनी है और अच्छी तरह से रिसर्च करनी है तो उसमें थ्योरी शुड कम फर्स्ट, क्योंकि थ्योरी के बेस पर ही तो आपने अपने आर्ग्यूमेंट को डेवलप करना है। और अगर आपने आर्ग्यूमेंट पहले डेवलप कर लिया और थ्योरी बाद में आ रही है तो फिर डजंट मेक सेंस। फिर आप जस्ट ऐसे ही, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप एक चैप्टर उसमें डाल देते हैं जिसका आपकी थीसिस के साथ कोई लिंक नहीं है। इस वजह से थ्योरी जो है वो रिसर्च प्रपोजल बनाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर बात करें और उसको ज़रूर देखें। और ये आप देखें कि इंटरनेशनली कोई भी एमफिल पीएचडी थीसिस विदाउट थ्योरी नहीं होती है, उसमें थ्योरी का पार्ट ज़रूर होता है, उसको थ्योरी का कनेक्शन करना ज़रूर होता है। पाकिस्तान में हमने देखा है कि विदाउट थ्योरी भी थीसिस चल जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इस तरह से नहीं होता है। और अब पाकिस्तान में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस पे एम्फोसिस आ रहा है कि आप जो है वो थ्योरी के पार्ट को अच्छी तरह से करें। अच्छा, उसमें जो है वो अब देखें कि थ्योरी तो हर यानी टॉपिक के हवाले से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो मैंने बेसिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बात की है कि डिटरमिन विच रिसर्च पैराडाइम योर रिसर्च प्रोजेक्ट विल लैंड इन। ये रिसर्च पैराडाइम ये जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ भी बहुत ज़्यादा लिंक है। ये मैं कभी एक और प्रोग्राम हमारे यहाँ जो है इस पे भी मैं करूँगा कि रिसर्च पैराडाइम्स किस तरह से रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ उनका लिंक होता है। वो एक बहुत एक अलग से डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं तो थ्योरी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको रिसर्च पैराडाइम के साथ, कि आपकी जो यानी रिसर्च टॉपिक है वो कौन सी रिसर्च पैराडाइम में फॉल करता है, वो यानी पॉजिटिविस्ट रिसर्च पैराडाइम में फॉल करता है, या जो है इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च पैराडाइम में फॉल करता है, या वो पोस्ट पॉजिटिविज्म में फॉल करता है। अगर आपका जो है वो इसमें फिर आपका, क्योंकि मेथोडोलॉजी के साथ ही लिंक है, अगर आप क्वालिटेटिव प्योर क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर वो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के साथ लिंक करेगा। अगर आप प्योर क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वो फिर जो है वो इंटरप्रेटिव पैराडाइम के साथ करेगा। और अगर आप मिक्स मेथड दोनों यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मिक्स कर रहे हैं तो फिर वो पोस्ट पॉजिटिविज्म के साथ करेगा। इस पर पूरा डिस्कशन है अलग से, लेकिन बहरहाल डिटरमिन एपिस्टेमोलॉजिकल एंड एंथोलॉजिकल पोजीशन ऑफ योर रिसर्च, ये भी उसी के पैराडाइम के साथ लिंक है। एक्सप्लेन हाउ दैट पर्टिकुलर रिसर्च पैराडाइम एंड एंथोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन हेल्प्स यू इन योर रिसर्च। फिर उसका जस्टिफाई करना है कि किस तरह से ये आपके जो है हेल्प करेगी। अमंग दोज थ्योरीज विच पर्टिकुलर थ्योरी यू विल यूज इन रिसर्च। अच्छा, ये जो है वो हर किसी की थ्योरी जो है हर लाजमी बात है टॉपिक और आपके उसके साथ लिंक होगा कि आपका टॉपिक जिस तरह का है उसके रेलेवेंट थ्योरीज कौन सी हैं, ये आपने डिटरमिन करना है सुपरवाइज़र के साथ मिल के कि कौन कौन सी थ्योरीज इस पर लग सकती हैं। और उसमें से फिर ये भी करना है कि यानी उनमें से ज़रूरी नहीं है कि आप, एक और क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम एक ही थ्योरी ज़रूरी है, क्या हम 2-3 थ्योरी मिक्स नहीं कर सकते? सो आंसर इज़ येस, यू कैन मिक्स, इट इज़ अप टू यू एंड टू योर सुपरवाइज़र कि वो डिसाइड करें कि इनमें से कौन सी सेट ऑफ थ्योरीज आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। एक थ्योरी भी हो सकती है, मिक्सचर ऑफ थ्योरीज भी हो सकती है। और ये भी आप बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें 2-3 थ्योरीज लग सकती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी थ्योरी मैं अपने रिसर्च में खुद यूज़ करूँगा, और फिर उसके लिए आर्ग्यूमेंट कि वाई दिस थ्योरी एंड वाई नॉट अदर्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप 3-4 थ्योरीज फिर बताएंगे कि भाई ये थ्योरी इस पे लग सकती है, ये भी लग सकती है, ये भी लग सकती है, लेकिन ये वाली थ्योरी जो कि मैं पिक कर रहा हूँ वो जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट है और उससे जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो ज़्यादा इफेक्टिवली मिल सकता है। तो ये आपने आर्ग्यूमेंट उसमें करना ज़रूरी है। और फिर वो थ्योरी यानी ये जो है वो, इसमें एक और बात भी है, थ्योरी का पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन के रिसर्च प्रपोजल में भी हो सकता है। इसके लिए एक अलग चैप्टर भी थीसिस में रखा जा सकता है। सो दैट इज़ अगेन अप टू द स्टूडेंट कि वो इसको जो इंट्रोडक्शन पार्ट या जो प्रपोजल पार्ट है उसमें इसका ब्रीफली आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको थ्योरी बिल्कुल डेवलप करते हैं थीसिस में तो फिर आपको एक अलग से चैप्टर रिक्वायर्ड होगा। जिस तरह से मेरे केस में पीएचडी जब मैंने किया था तो मुझे एक अलग चैप्टर की ज़रूरत पड़ी थी। ये वेरी करता है स्टूडेंट पे कि उसको जो है वो इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, वो डिटरमिन करना पड़ेगा कि एक अलग से चैप्टर थ्योरी का चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन थ्योरी इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि थ्योरी के ऊपर ही आपने पूरा उसका स्ट्रक्चर, थ्योरी हेल्प्स गाइड रिसर्च, कैन अंडरपिन मेथोडोलॉजी एंड कैन हेल्प अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन ऑन द टॉपिक।
यानी यही आपको गाइड करेगी कि आपने रिसर्च किस तरह से करनी है, उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, और पहले क्या चीज़ है जिसके साथ आपको कनेक्ट करना है। यानी जो पहले से लिटरेचर अवेलेबल है उसके साथ जो कनेक्शन है वो भी आपको थ्योरी उसको करेगी, ताकि फिर आपका जो है वो पूरा, क्योंकि कोई भी रिसर्च हवा में तो हो नहीं सकती ना, तो उसका जो कनेक्शन है वो जो प्रीवियस रिसर्च पहले हो चुकी है उसके साथ मस्ट है, उसको कनेक्ट करने में आपको थ्योरी बहुत हेल्पफुल एक टूल है। जी नेक्स्ट स्लाइड। लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, ये जो हम सीरीज़ चल रहे हैं ये मेरी प्रिफर्ड है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस से इसको लिखा जाए, ये आप देखेंगे बहुत से लोग इसको डिफरेंट सीक्वेंस के साथ लिखते हैं। मेरे हिसाब से लिटरेचर रिव्यू जो है वो जो स्पेशली रिसर्च क्वेश्चन उनसे पहले आना चाहिए, क्योंकि उसी में से रिसर्च क्वेश्चन लगता है। लेकिन आपने नोट किया होगा कुछ लोग लिटरेचर रिव्यू बिल्कुल एंड में जाके देते हैं। वेल दैट इज़ फाइन, लेकिन मेरे हिसाब से इसको मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में पहले होना चाहिए, ताकि उसके बेस पे ही आपका फिर आपका रिसर्च क्वेश्चन बनेगा। सो लिटरेचर रिव्यू में क्या करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के पास होता है। और एक जो कॉमन प्रैक्टिस मैंने देखी है वो ये है कि लिटरेचर रिव्यू इस तरह से लोग बनाते हैं कि वो देखते हैं कि टॉपिक कौन सा है अपना, उससे रेलेवेंट जो है वो कोई 10 आर्टिकल 20 आर्टिकल बुक्स मिक्स करके उनकी समरीज लिख देते हैं। अगर जो है वो बहुत अच्छा है तो 20 कर लेगा, 30 कर लेगा, 40 कर लेगा, यानी उसको बढ़ाता चला जाएगा। बट दैट इज़ नॉट द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू हमें क्यों चाहिए और लिटरेचर रिव्यू है क्या, ये बहुत ज़रूरी है। वाई मस्ट रिव्यू द एकेडमिक, ये हमें करना क्यों है, ये बहुत ज़रूरी है ना समझना कि लिटरेचर रिव्यू आपने करना क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो ये ज़रूरत इस वजह से है कि देखें अब जो आपकी रिसर्च है जो भी है उसमें आपको था कि आपने फाइंड आउट करना है कि आप कोई न्यू डायमेंशन कौन सा है जिसको करेंगे। और न्यू डायमेंशन आपको पता कैसे चलेगा, वो पता जब चलेगा ना जब कि आप प्रीवियस को आप जानते होंगे कि पहले रिसर्च क्या है तो नया, जब पिछली रिसर्च आपके टॉपिक पे आपको पता ही नहीं है तो आप नई रिसर्च कैसे, तो आप जब जो भी सोचेंगे हो सकता है उस पर पहले से रिसर्च अवेलेबल हो, तो फिर वो तो नहीं होगी ना। तो इस वजह से लिटरेचर रिव्यू जो है वो उसका पर्पज़ यही है कि आप जो है वो न्यू डायमेंशन उसमें से ढूंढ सकें और प्रीवियस रिसर्च जो उस पर अवेलेबल है उसका एक क्या कहते हैं उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सकें। यानी इसी वजह से आइडेंटिफाई क्लासिकल एंड करंट रिसर्च ऑन योर टॉपिक एंड द थियरीज यू आर यूजिंग इन योर रिसर्च, ये लिटरेचर रिव्यू है। बेसिकली आइडेंटिफाई करना है, आपने समरीज नहीं देनी है, यही तो सबसे बड़ी गलती है। अब समरीज आप कितनी दे पाएंगे, यही अब आप फॉर एग्जाम्पल समरीज देते हैं तो एक पैराग्राफ समरी में चली जाती है, जबकि आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करने का आपको काम दिया गया था, आपने खामखा अपना काम बढ़ा दिया और आपने बहुत से पेजेस ज़ाया कर दिए और आपने काम भी नहीं किया। 50 आपने आर्टिकल बता दिए, लेकिन उसमें वो जो बहुत से आर्टिकल्स अभी भी मिसिंग हैं, बहुत सा रिसर्च अभी भी मिसिंग है जो केस उस पर हुआ है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आता है कि फिर हम कवर कैसे करें, यानी क्योंकि टॉपिक को और उस सारे को, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया यहाँ पे आ जाता है कि आप जब आप क्लासिकल और करंट दोनों रिसर्च आपने पूरे का अहाता करना है, तो फिर इस छोटी सी स्पेस में कैसे होगा ये। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने आगे चल के इस पे बात होगी कि वो किस तरह से आपने उसको कैटेगराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि फिर आप उसको कर सकें। दूसरी बात ये कि आपने यानी आइडेंटिफाई करना है कि लिटरेचर किस तरह का लिटरेचर है, उनको एक ही यानी उसमें फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक पे कहते हैं कि आपका इस एंगल पे 10 बंदों ने लिखा है, तो उनके सिर्फ नाम देने से यू हैव मैंशन देम कि भाई इन्होंने कर दिया है, तो दैट इज़ गुड इनफ। लेकिन अगर आप 10 की समरी करेंगे तो फिर बहुत बड़ी एक जो है वो आपको उसमें करनी पड़ेगी। तो इस वजह से यानी आपने उनको आइडेंटिफाई करना और बताना है कि इस पर क्या जो है वो किस तरह का लिटरेचर अवेलेबल है और उसमें कौन सी एंगल्स को कवर किया गया है, ये बेसिकली उसका पर्पज़ है। एंड शो योर एबिलिटी टू क्रिटिकली इवेल्युएट रेलिवेंट लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उसको क्रिटिकली इवेल्युएट यानी उसको फिर जो किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट जो लिटरेचर है उसको कैटेगराइज किस तरह से करते हैं, उसको किस तरह से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, यही बेसिकली लिटरेचर रिव्यू में है। एंड इंडिकेट्स योर एबिलिटी टू इंटीग्रेट एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, यानी उसमें बहुत ज़्यादा लिटरेचर है लेकिन सिंथेसाइज करके उसको मीनिंगफुल उसका जो है वो बताना है किस तरह से, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आइडेंटिफाई द गैप ऑफ द नॉलेज, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने उसका आपका पर्पज़ इसका यही है कि आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर में गैप कौन सा है और उसमें से कौन सा गैप आपने फिल करना है, ये उसका पर्पज़ है।
उसका पर्पज़ ये नहीं है कि आपने 20 समरी, 50 समरी, 200 समरीज दे दी, ये उसका पर्पज़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट आपने नोट किया होगा, और मंजूर साहब भी बैठे हैं, कि जो है आपके पास जब आते हैं तो यही होता है कि वो समरीज ही बस होती हैं, कोई पता नहीं चलता कि उसमें कौन सा गैप था या क्या था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें है। जी आगे चलें। जी अच्छा, ये मॉड्यूल जो है वो मेरी अपनी एक तरह से है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है यानी स्टूडेंट्स पे कि उनको ये मॉड्यूल सूट करता है या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही यूज़फुल मॉड्यूल है, जिसको फॉलो करके आप लिटरेचर रिव्यू को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। उसमें मेरा पॉइंट है कि लिटरेचर रिव्यू इज़ नॉट इन लिटरेचर यू नीड टू शो व्हाट, ये तो वही हो गई कि हाँ जी, इन लिटरेचर रिव्यू यू नीड टू शो व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर एग्जिस्ट ऑन ब्रॉड एंगल्स, कैटेगरीज रिलेटेड टू योर टॉपिक। सो कैटेगराइजेशन ऑफ रिसर्च लिटरेचर बहुत ज़रूरी है कि आपका फॉर एग्जाम्पल रिसर्च जो भी टॉपिक है उसमें कौन सी कैटेगरीज आप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर ऑन थ्योरेटिकल साइड एक कैटेगरी हो सकती है, लिटरेचर जो है आपका कोई हिस्टोरिकल है तो उसको आप फेजेस में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि इस फेज़ तक ये लिटरेचर है, उस फेज को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें यानी ये डिपेंड करता है कि आपके टॉपिक क्या है, उसके अराउंड उसको आपने प्ले करना है। लेकिन उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रेफरेबली डिवाइड योर लिटरेचर इन 4 to 5, बहुत ज़्यादा कैटेगरी ना बनाएं, 4 to 5 कैटेगरी बनाएं। डिस्कस द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन ईच कैटेगरी, पॉइंटिंग आउट व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर एग्जिस्ट इन ईच कैटेगरी एंड विच एंगल्स आर कवर्ड। या आपने हर वो जो कैटेगरी है उसमें जो लिटरेचर अवेलेबल है वो बताना है, और उसमें कौन सी एंगल्स कवर्ड हैं, कौन सी एंगल्स जो है वो मिसिंग हैं, गैप्स क्या हैं, वो आइडेंटिफाई करके बताने एक एक कैटेगरी का। प्रेफरेबली स्टार्ट फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी एंड इन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रेफरेबली स्टार्ट फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी एंड इन द एंड रीच टू द स्पेसिफिक कैटेगरी इन विच यू वांट टू मेक योर कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेटेजी थिंग यहाँ पे आएगी कि आप किस तरह से उनको नंबरिंग करते हैं और किस तरह से ऑर्डरिंग करते हैं। उसमें पॉइंट ये है कि आपने एक जनरल कैटेगरी से स्टार्ट करना, फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर ऑन थ्योरी जो भी आपकी है उसके अराउंड, अब उसको फिर आपने आना है और फिर आपने आखिरी जो कैटेगरी होगी वो होगी जहाँ पे आपने कंट्रीब्यूशन अपना क्लेम करना है, और वो कैटेगरी वो होगी जहाँ पे कम से कम लिटरेचर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप उसको दिखा सकें कि देखें इसमें बहुत कम लिटरेचर है तो यहाँ पे मैं इस तरह से कंट्रीब्यूट करूँगा या करूँगी। तो वो जो है वो इस तरह से आपने उसको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि जो लास्ट कैटेगरी है वो लीस्ट कवर्ड हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैप हो, ताकि आप उसमें गैप फिल करने की एक जो है दिखा सकें। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है, वरना आप जो है बहुत ही उसको जो है वो एक हैपहैज़र्ड करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से इसको यानी मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, लेकिन बहुत से आथर्स इसको डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि यही एक स्ट्रेटजी है। दिस इज स्ट्रेटजी विच आई अडॉप्ट एंड यू कैन आल्सो यूज़ इट। जी नेक्स्ट जी, कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज और सिग्निफिकेंस। अब ये भी एक और जो चक्कर है जिसमें मैंने देखा है कि बहुत से जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं सिग्निफिकेंस जब उसको बयान करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी जो है वो जिसमें हम कहते हैं ना कि वो छोड़ते हैं उसमें जी, कि हम ये कर लें, हमने ग्राउंड ब्रेकिंग है हमारा, इससे पहले इस पर कुछ भी नहीं हुआ, और ये हालांकि उस पर बहुत सी रिसर्च अवेलेबल होती है, लेकिन वो लिख लेते हैं कि भाई ये हमने इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की है, कभी किसी ने की जरूरत ही नहीं हुई। ये एक बड़ी बड़ी छोड़ने वाली जो बातें हैं वो हमारे यहाँ वो देखी गई मैंने कि उसको करते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि आप लिटरेचर रिव्यू में लेके आए हैं, वहाँ से कंट्रीब्यूशन उसको कनेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी आपने डिफाइन की थी और उस कैटेगरी में क्या कंट्रीब्यूशन आप करेंगे, स्पेसिफिकली बताएं, बड़ी बड़ी ना छोड़ें। ये एक इसका एक तो ये है। और दूसरा ये है कि इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज में। आपको बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल एमफिल थीसिस और पीएचडी थीसिस में, स्पेशली पीएचडी थीसिस, आप अगर कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो डिफेंस है वो डिपेंड करता है इस पे कि यू हैव टू शो दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग सिग्निफिकेंट इन रिसर्च, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था, पहले किसी ने उस तरह से काम नहीं किया, आपने एक बिल्कुल न्यू थिंग, समथिंग विच यू हैव डेवलप्ड जो कि पहले नहीं थी, वो ह्यूमन नॉलेज में कोई एडिशन आपने किया है। सो समथिंग यू हैव एडेड टू द ह्यूमन नॉलेज, ये आपने प्रूव करना है अपनी डिफेंस में, और ये आपके जो प्रपोजल है उसमें आपने लिख के छोड़ना है ताकि बाद में आपसे क्वेश्चन होगा उसी पे।
और उसी पे आपसे सवाल होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो इस पे सवाल करेंगे कि आपने जो बात की है उसमें तो वज़न नहीं है, आपने तो वैसे ही बात की है, उसमें तो ये तो अवेलेबल है इस पे रिसर्च पहले से, आपने कहा है कि आपने ग्राउंड ब्रेकिंग किया है, वो आपको 20 किताब बता देगा कि इस पे तो ये भी है, इस पे तो ये भी है, उस पे तो वो भी है, तो आप पे वहीं पे आपकी जो है ना थीसिस वो फजूल हो जाएगी। इस वजह से आपने बड़ा केयरफुली उसको सोचना है और कंट्रीब्यूशन रियल हो वो क्लेम करें, खामखा कंट्रीब्यूशन क्लेम ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने कंट्रीब्यूशन सिर्फ क्लेम नहीं करना, उसको प्रूव भी करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है और डिफेंड भी करना है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कंट्रीब्यूशन के हवाले से जिस तरह से यहाँ पे है कि देखें, आप दो किस्म का कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकते हैं, थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन और एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन का मकसद है कि पहले एम्पेरिकल पे आ जाते हैं। एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन क्लेम करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन के। स्टेट व्हाट डज योर रिसर्च ऐड टू द नॉलेज ऑन द टॉपिक ऑन एम्पेरिकल प्रैक्टिकल साइड। यानी इसमें क्योंकि पाकिस्तान में हम मोस्टली ये वाला कंट्रीब्यूशन ही करते हैं, वो ऊपर वाले पे हम कम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत से प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं जिन पे रिसर्च पहले से अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पे वो फील्ड वर्क फॉर एग्जांपल हम इस तरह का करते हैं कि जो कि जहाँ पे कोई कभी गया नहीं है, तो उससे हम दिखा देते हैं कि भाई देखें ये जो एरिया है वो कवर्ड नहीं है, इस जगह पे कोई बंदा गया नहीं है, इसको इस एंगल से किसी ने देखा नहीं है, तो यू कैन ईजीली शो योर कंट्रीब्यूशन, और वो ज़्यादा जस्टिफाइबल ईजी है। और इस वजह से आपने देखा होगा बहुत सी जो हमारी रिसर्च हैं वो एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन पे ही रिलाय करती हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। और एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन में क्या होता है बेसिकली, एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन में बेसिकली यही होता है कि आप जो है वो फील्ड वर्क के थ्रू बेसिकली बताते हैं कि आपने उस फील्ड को कवर किया है जो कि पहले से कवर्ड नहीं है, उसके थ्रू आप जो है उसका बताते हैं, और ये आपका जो है वो एक तरह से कंट्रीब्यूशन वो माना जाता है। थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपने बताना है कि किस तरह से आपने कोई नई थ्योरी यानी बनाई है, या फिर जो ओल्ड थियरी है उसको अप्लाई करके उसमें किस तरह से कोई मॉडिफिकेशन की है, कोई चेंजेस किए हैं, या उसमें कोई रिकमेंडेशंस आपकी हैं कि थियरी में क्या जो पहले से थियरी एग्जिस्ट करती है उसमें क्या प्रॉब्लम एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें उसको किस तरह से आपने सॉल्व किया है, वो अगर आप कर पाते हैं तो देन योर थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन यू कैन मेक अ क्लेम। और आप यानी दोनों भी क्लेम कर सकते हैं एक ही रिसर्च में कि आपने एम्पेरिकल साइड पे ये वाला कंट्रीब्यूशन किया और थ्योरेटिकल साइड पे ये वाला किया, तो आपने फिर दोनों को एक्सप्लेन करना होगा कि आपने कौन सा कंट्रीब्यूशन कौन सी जगह पे किया है। तो ये इस तरह से जो है आप अपना ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन आपने क्लेम करना होता है अपनी थीसिस में, और ये जो सिग्निफिकेंस है उसमें बेसिकली यही पॉइंट है कि आपने किस तरह से जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है वो कौन सी बात है नई आप ऐड कर रहे हैं, और वो आपका कंट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल है कि एम्पेरिकल है, और थ्योरेटिकल कौन सा पार्ट है और एम्पेरिकल कौन सा पार्ट है, ये आपने वहाँ पे क्लेम करना है। लेकिन आपने देखा होगा मोस्टली सिग्निफिकेंस जो पार्ट है वो इस तरह से लिखा नहीं जाता, वो उसमें बस वैसे ही कहानियाँ भर दी जाती हैं जिनका आपकी थीसिस के साथ कोई ज़्यादा लिंक नहीं होता। उसमें बहुत सी चीज़ें बता, माय रिसर्च विल बी डिस्क्रिप्टिव दिस दिस दैट दैट, जिसका कोई उसमें फिर अंदर जाएँ तो वो चीज़ होती नहीं है, तो वो प्लीज़ ना करें। ये स्पेसिफिकली जिस तरह से बात है उसको उस तरह से उसको करें। जी नेक्स्ट। अच्छा, हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन पे भी हम आएंगे। ये जो है वो एक और बात कि हम हाइपोथेसिस जो है वो बहुत से लोग उसको टाइटल देते हैं और 3-4 स्टेटमेंट्स उसमें वैसे ही खानापुरी के लिए डाल के उसको कह देते हैं कि दिस इज़ हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइपोथेसिस क्या है। ये तो मैट्रिक का स्टूडेंट भी जानता है वैसे तो, लेकिन देखा ये गया है कि हमारे पीएचडी थीसिस में भी हाइपोथेसिस का मतलब समझे बगैर उसको क्लेम कर दिया जाता है कि भाई दिस इज़ आवर हाइपोथेसिस। और वो फिर जब आप हाइपोथेसिस कोई दे रहे हैं तो फिर उसको प्रूव भी करें ना, विदाउट सिर्फ देना तो नहीं है उसको, तो उसको प्रूव किस तरह से करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नेचुरल साइंस और सोशल साइंस का डिफरेंस को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अब वेदर हाइपोथेसिस मस्ट इन सोशल साइंस रिसर्च, आई वुड से नो। हाइपोथेसिस आपके लिए जो सोशल साइंस रिसर्च में ज़रूरी नहीं है, यानी नेचुरल साइंसेज में मोस्ट प्रोबेबली येस यू नीड हाइपोथेसिस, बट सोशल साइंस में विदाउट हाइपोथेसिस योर थीसिस कैन बी अप्रूव, यू कैन हैव योर पीएचडी इवन विदाउट हाइपोथेसिस। तो ये कोई फिक्स नहीं है आपने ज़रूर करनी है, इस तरह से नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप करते हैं तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप
कह रहे हैं कि हम मेरी हाइपोथेसिस है, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे वो क्या है, और वो फिर आपने पूरी करनी है। वो क्या है? फॉर एग्जांपल, अ हाइपोथेसिस एन अनप्रूवन प्रोपोजिशन, अ स्टेटमेंट अबाउट रियलिटी दैट इज एम्पेरिकली टेस्टेबल। यानी इसमें पॉइंट कि आपने जो भी प्रोपोजिशन दी है उसको एम्पेरिकली टेस्ट करके बताना है, प्रूव करना है, ठीक। अ हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स काजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट्स। अब यहाँ पे यानी आपने अब कोई स्टेटमेंट दी जिसमें कोई काजल लिंक नहीं है, तो फिर यह हाइपोथेसिस नहीं है। उसमें वेरिएबल्स और उनका काजल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है, टेररिज्म बढ़ी है, ये मेरी हाइपोथेसिस है। तो नहीं सर, ये आपकी हाइपोथेसिस नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कोई काजल लिंक नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है। हाँ, अच्छा, आप ये कहें कि ये जो टेररिज्म बढ़ी है उसको लिंक करें ना किसी और चीज़ के साथ, काज उसका क्या है, फिर वो हाइपोथेसिस बनेगी कि पावर्टी बढ़ने से हाइपोथेसिस बढ़ती है, टेररिज्म बढ़ती है, फॉर एग्जांपल उसका काज ये है, या कोई और काज आप उसको देख के उसके साथ फिर लिंक करके उसको कनेक्ट करें और फिर उसको प्रूव करें एम्पेरिकली, फिर बात बनती है। वरना सिर्फ ये बता देने से, कोई सिंपल सा स्टेटमेंट आप दे दें और कहें कि ये मेरी हाइपोथेसिस है, तो ये हाइपोथेसिस नहीं है। उसको काजल जो लिंक है, उसका रिलेशनशिप, वो बताना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, लेकिन आपको मैं कहूँगा कि अगर आप हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड कि यू मस्ट प्रोवाइड अ काजल रिलेशनशिप एंड एम्पेरिकली टेस्टेबल। और दूसरा ये कि आपने जो भी उसमें कंस्ट्रक्ट डाले हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट्स जो होते हैं, उनकी फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन बतानी है। ऑपरेशनल डेफिनेशन का क्या मतलब है? फॉर ऑल कंस्ट्रक्ट मस्ट बी, ऑपरेशनल डेफिनेशन यानी मेजरेबल उनको बनाना है। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आप इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस के लिए आईक्यू स्कोर वो आप करेंगे तो फिर आपको टेस्ट करके पता चलेगा। तो इस तरह से जो है वो आपने उसकी जो है ऑपरेशनल डेफिनेशन अगर आप नहीं बताते तो फिर आपका वो हाइपोथेसिस नहीं है। आपने जो भी अब डेमोक्रेसी का कंस्ट्रक्ट है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बढ़ी है कि कम हुई है, कैसे उसको आप करेंगे टेस्ट? उसके लिए आपके पास क्या यार्डस्टिक्स हैं, वो ऑपरेशनल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की क्या होगी, टेररिज्म की ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, पावर्टी की ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, ये आपको फिर जो है वो उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन बतानी पड़ेगी अपने लिए, और वो फिर जस्टिफाई भी करनी पड़ेगी कि वाकई इससे वो जो है वो जस्टिफाइबल है कि नहीं। पावर्टी फॉर एग्जांपल, $1 वाला वो जो पहले चलता था अब क्वेश्चनेबल हो गया, तो उसके और चीज़ें बहुत सी आ गई हैं जिससे पता चलता है कि HDI इंडेक्स का स्कोर देख के आप उसको करेंगे, फिर वो डेटा कहाँ से लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है उस पर, अगर आप हाइपोथेसिस के रूट से जाते हैं। So hypothesis is not required, but if you are claiming, then you have to fulfill all those requirements. जी, next. अच्छा, अब रिसर्च क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन तो मस्ट है। आप जो भी आप करते हैं थीसिस या MPhil या PhD में, उसमें रिसर्च क्वेश्चन इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड। उसमें जो है वो बहुत से मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीरीज ऑफ रिसर्च क्वेश्चन वैसे ही डाल देते हैं, कोई 5, कोई 10, कोई 15, जितना दिल करता है बस डाल देते हैं, और उसके बाद थीसिस में उनको में से 1-2 के अलावा किसी का आंसर नहीं होता। जब आप रिसर्च क्वेश्चन कोई भी डाल रहे हैं तो दैट मस्ट बी आंसर्ड ऑब्वियसली, क्योंकि वरना क्यों खामखा डाल रहे हैं आप। उसकी वजह से मैं उसमें कहता हूँ कि आप रिसर्च क्वेश्चन एक डालें, ज़्यादा ना करें, और मेन रिसर्च क्वेश्चन उसको रखें। देयर शुड बी वन मेन रिसर्च क्वेश्चन विच शुड कवर योर टॉपिक एज अ होल। आप क्योंकि टॉपिक के साथ लिंक, ये भी तो नहीं हो सकता ना कि आपका रिसर्च क्वेश्चन एक तरफ जा रहा है और आपका टॉपिक कंप्लीटली दूसरी तरफ। ये होता है बहुत से जो आपके पास थीसिस आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है कि रिसर्च क्वेश्चन और आपका जो टॉपिक है मैच नहीं करते, तो इनको एक दूसरे के साथ अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। और वो आई वुड सजेस्ट, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये दोबारा से मेरी अपनी जो पढ़ा के और काम करके जो मुझे समझ आया कि दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन डू इट, बट सम पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ एज वेल, और इसके तरीके बहुत से रूट हैं, लेकिन दिस इज़ वन वे टू डू इट इन अ बेटर वे। और वो मेरे हिसाब से ये है कि आप एक मेन रिसर्च क्वेश्चन बनाएं और फिर सप्लीमेंट्री रिसर्च क्वेश्चन बनाएं। अच्छा, मेन रिसर्च क्वेश्चन शुड कवर द होल। अच्छा, इसमें एक और बात है कि रिसर्च क्वेश्चन वर्ड से भी लोग कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन का मकसद ये नहीं है कि हमेशा वो इंटरोगेटिव और वो क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड हो। इट कैन बी अ स्टेटमेंट एज वेल, स्पेशली मेन क्वेश्चन।
यानी ये फिक्स नहीं है कि उसको जो है वो क्वेश्चन मार्क से ही एंड हो, उसको जो है वो इवन स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन आपने उसको कवर करना है अपने रिसर्च टॉपिक को जो कि आपने चूज़ किया है। अच्छा, उसमें सप्लीमेंट्री रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट 3 to 5 रिसर्च क्वेश्चन, ईच सप्लीमेंट्री रिसर्च क्वेश्चन शुड कवर सम पार्ट ऑफ योर मेन रिसर्च। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपका रिसर्च क्वेश्चन मेन है उसी में से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होने चाहिए। ये नहीं कि आपका रिसर्च क्वेश्चन मेन एक तरफ जा रहा है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फिर अलग से कहीं से आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। दे मस्ट कम फ्रॉम योर रिसर्च क्वेश्चन। और इसमें मेरी जो है वो ये है कि आइडियली ईच चैप्टर शुड आंसर वन ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन, क्योंकि इससे आपकी वो जो है ना आउटलाइन भी बन जाएगी। चैप्टराइजेशन तो आपने वैसे भी करनी है, तो आपने बेहतरीन तरीका इसका यही है कि मेन रिसर्च क्वेश्चन आपके टॉपिक को कवर करे और आपके जो सप्लीमेंट्री रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो आपके चैप्टर्स को कवर करें। इस तरह से आपकी पूरी आउटलाइन बन जाती है और आपका पूरा वो है जो उसका स्ट्रक्चर भी बन जाता है। रिसर्च क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर, मेजरेबल एंड सिंपल। डू नॉट यूज एडजेक्टिव्स एंड इमेजरेबल कंस्ट्रक्ट्स इन योर रिसर्च क्वेश्चन। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो एडजेक्टिव्स, ये एक और बात मैं जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनके लिए कहूँगा कि आप एडजेक्टिव्स यूज़ ना करें ओवरऑल। ये आप अपनी हैबिट बनाएं आहिस्ता आहिस्ता, कि क्योंकि पाकिस्तान में हमें तो आदत पड़ी होती है, हम बड़े एडजेक्टिव्स मिलाते हैं हर वक्त, क्योंकि एडजेक्टिव्स का प्रॉब्लम यह है कि उनको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। और रिसर्च में ये बात है, जो आप चीज़ प्रूव नहीं कर सकते वो आप लोग कहनी भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से एडजेक्टिव्स को आप अपनी यानी वोकेबुलरी से निकालना शुरू करें। ये एक प्रैक्टिस यानी, और इसका बहुत फ़ायदा आपको ये होगा कि आप देखेंगे कि आप जो है आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो चीज़ है, जो बात आप करते हैं उसमें भी काफ़ी ठहराव आएगा और आपकी बात वज़नदार होगी और लोग उसको जो है वो सीरियसली लेंगे। क्योंकि आप जब बहुत से एडजेक्टिव बोलते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होती, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता लगते हैं ये तो वैसे ही छोड़ता रहता है। तो इस वजह से वो जो एक हैबिट भी बनाए, ये एक स्पेशल रिसर्चर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये हैबिट बनाए कि वो अपनी जो एडजेक्टिव्स हैं उनको कम से कम रखे, क्योंकि एडजेक्टिव्स के नॉट बी प्रूवन, और जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो मेजरेबल हैं। यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ऑपरेशनल डेफिनेशंस फॉर एवरी एम्बिगुअस और एब्स्ट्रैक्ट। वही बात यहाँ पे भी है कि आप बहुत सी इस तरह की बात करेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसको आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको आपने डिज़ाइन इस तरह से करना है ताकि वो आपका जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर भी उसमें आ जाए। जी नेक्स्ट जी, रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट, ये भी एक रिसर्च प्रपोजल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसको भी बहुत से लोग जो है वो एक तो बहुत ब्रीफली करते हैं और उसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो जो है वो उनको कवर नहीं करते। उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले तो आपने ये डिटरमिन करना है कि वेदर योर रिसर्च, ब्रेक करें क्या, चलते रहें? अच्छा आगे चलें थोड़ा, ये रिसर्च जी। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने करना है वो ये डिटरमिन करना है कि आपका जो मेथड होगा वो क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा या मिक्स मेथड होगा, ये आपने ज़रूर बताना है। अच्छा, बताना सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसमें एक और बात कि लोग बता देते हैं बस कि मैं ये करूँगा और वो समझते हैं कि मेरा काम अब हो गया, बस मेरा बस रिसर्च मेथड मैंने बता दिया। लेकिन नहीं, ये नहीं करना। सिर्फ आपने ये बताना है कि आपने कौन सा आइडेंटिव यानी मेथड यूज करना और क्यों करना है। वाई दिस मेथड, वाई नॉट, अगर आप फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव कह रहे हैं तो वाई क्वालिटेटिव, वाई नॉट क्वांटिटेटिव। उसको आर्ग्यूमेंट के साथ प्रूव करना है कि क्वांटिटेटिव स्टडी इसके साथ अच्छी नहीं बनेगी बल्कि क्वालिटेटिव ही प्रेफरेबल है, ये आपने आर्ग्यू करना है। तो इसको यानी उसके रीजंस देना और लॉजिक देना बहुत ज़रूरी है, डिफेंड करना उसको बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर डेटा कलेक्शन आप किस तरह से करेंगे वो भी लाजमी आपके साथ लिंक होगी। आपने जो भी मेथोडोलॉजी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड की है उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेटा कलेक्शन टेक्निक होगी और उसमें जो है वो लाजमन आपने फिर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हिसाब से आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं, क्वालिटेटिव इंटरव्यू, क्वांटिटेटिव सर्वे मेथड, ये सारा जो आपने करना है वो आपने यहाँ पे बताना है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि आप जो है वो फील्ड वर्क है कि डेस्क स्टडी है। आपकी जो स्टडी जो भी आप कर रहे हैं इसमें फील्ड वर्क इन्वॉल्व है कि नहीं है। डेस्क स्टडी का मकसद है कि आपने बुक्स से और आर्टिकल से और सर्च इंजन से और उससे बैठ के
रिसर्च करनी है। फील्ड वर्क का मकसद ये है कि आपने जाके कहीं पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं और जो है वो या फिर डेटा कलेक्शन के लिए आप कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और डिफरेंट चीज़ें जाके वहाँ पे घूमनी है, डेटा कलेक्शन करनी है, इंटरव्यू नहीं भी करने, फिर भी आपने फील्ड वर्क आपका हो सकता है बगैर इंटरव्यू के भी। लेकिन तो आपने फील्ड वर्क का बताना है कि आपने अगर फील्ड वर्क उसमें है तो वो किस तरह का है और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। आप सिर्फ जो है जाके डेटा कलेक्ट करेंगे, ऑफिस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, या फिर इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे तो कितने करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और कितने करेंगे तो फिर एक और बात उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके इंटरव्यूज़ आप कंडक्ट करिए, बहुत सा एक और बात, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो सोशल साइंस में मैंने देखा है कि हमारे जो स्पेशली जो लोग क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि हमारी ज़्यादा क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च के स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें तो सैम्पलिंग बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम तो क्वालिटेटिव कर रहे हैं। ये तो क्वांटिटेटिव वाले जाने और वो जाने के वो सैम्पलिंग बताते फिर हम क्यों बताएं, हम तो क्वालिटेटिव, हम तो जो जिससे दिल करेगा उससे इंटरव्यू कर लेंगे, जो हमें इंटरव्यू देगा हम उससे इंटरव्यू ले लेंगे। सो दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। आपको इवन क्वालिटेटिव इंटरव्यू अगर आपका है उसमें भी आपको सैम्पलिंग टेक्निक बताना बहुत ज़रूरी है और सैम्पलिंग क्राइटेरिया बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका क्राइटेरिया क्या होगा। और आप मुंह उठा के किसी से बात नहीं कर सकते, आपने उसको बाकायदा सैम्पलिंग टेक्निक के साथ जाना है। और आप सैम्पलिंग टेक्निक होती है, यानी हमें पता नहीं होता स्टूडेंट्स को कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसमें फॉर एग्जाम्पल स्नोबॉल सैम्पलिंग बहुत इस्तेमाल होती है, लेकिन पर्पजिव सैम्पलिंग इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन वो स्टूडेंट को पता नहीं होता। तो ये आप नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं क्वालिटेटिव कर रहा हूँ तो मेरे लिए ऊपर सैम्पलिंग लागू नहीं होती। ये आंसर जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको सैम्पलिंग को जाके पढ़ें और उसमें से जिस तरह से मैं बताया, स्पेशली क्वालिटेटिव अगर आपकी रिसर्च है तो फिर पर्पजिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये टेक्निक्स ज़रूर पढ़ें और फिर देखेंगे उनमें से कौन सी टेक्निक है जो कि आपके लिए रेलेवेंट है। और अगर आपकी क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग रिसर्च है तो उसके लिए नॉन पर्पजिव और आप इसके अलावा जो आपकी यानी सैम्पलिंग की दूसरी टेक्निक्स हैं उनको जाके पढ़ें, ताकि वो जो है वो आप उसको फिर जस्टिफाई कर सकें। तो इसके लिए फिर आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स को बड़े डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, इस तरह से फिर आपने एक और भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हमारे यहाँ होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा और सोर्स का। ये भी डेफिनेशन बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट में मैंने देखा कि उनको कन्फ्यूजन होता है, स्पेशली प्राइमरी डेटा और प्राइमरी सोर्स का डेफिनेशन, क्योंकि ये जो है वो वर्ड थोड़ा प्राइमरी दोनों में आ रहा है, तो इस वजह से कंफ्यूज स्टूडेंट होते हैं कि प्राइमरी डेटा कौन सी है और प्राइमरी सोर्स कौन सा है। अब प्राइमरी सोर्स का मकसद तो ये है, जिस तरह से आप देखें कि एक इंटरव्यू है किसी का भी, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू जो है वो हामिद मीर ने कंडक्ट किया, ये एक प्राइमरी सोर्स है, लेकिन ये प्राइमरी डेटा नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू आपने कंडक्ट नहीं किया, ये हामिद मीर ने कंडक्ट किया। ये प्राइमरी डेटा हामिद मीर का तो है, आपका नहीं है। आपके लिए प्राइमरी डेटा सिर्फ और सिर्फ वो है जो कि आप खुद कलेक्ट करें। प्राइमरी सोर्स हो सकता है, यानी आप प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शरी सोर्स, वो यानी आप बेसिकली डिपेंड करता है कि आप का जो फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स और इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स है और सेकेंडरी डेटा भी आपका वही है। लेकिन आप अगर क्लेम करते हैं कि मेरा प्राइमरी डेटा है और आप कहते हैं कि मैंने जो है वो टीवी से इतने इंटरव्यू निकाल के उनका जो है वो डेटा किया, तो वो आपका प्राइमरी डेटा नहीं है। प्राइमरी डेटा तब बनेगा जब आप खुद इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा जहन में रखें कि आप जब क्लेम करते हैं कि मेरा प्राइमरी डेटा है तो वो वाकई प्राइमरी डेटा होना चाहिए। आप सिर्फ खामखा किसी चीज़ को प्राइमरी डेटा ये ना करें क्लेम, ये बहुत ज़रूरी है डिफ्रेंशिएशन इसमें करना। सैम्पलिंग डेटा एनालिसिस, अगर आपका उसमें फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव डेटा है तो SPSS और दूसरी कोई और आप कर रहे हैं, नैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, कंटेंट एनालिसिस, आपका क्वालिटेटिव है तो NYVO, ये डिफरेंट जो है वो आपके टूल्स अब आ चुके हैं, तो वो भी आपने फिर उसको सीख के और उसको करना है, तो उस तरह से आपने बताना चाहिए। तो ये पूरी जो है वो डिटेल्स आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के पार्ट में आपने देनी है और उसको जस्टिफाई करना है कि ये हम क्यों इस तरह से उसको कर रहे हैं। जी नेक्स्ट। अच्छा, ये एक और जो पार्ट है जो कि हमारे यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो रिसर्च क्या कहते हैं प्रपोजल्स में मिसिंग होता है, लिमिटेशंस कुछ लोग लिख लेते हैं, एथिकल इश्यूज
बहुत कम हमारे रिसर्च प्रपोजल में मैंने देखा है कि होता है। उसकी वजह एक ये भी है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी एथिक्स कमेटी किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। ये बड़ा अजीब सा एक अलमिया है जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म से उठाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, HEC थोड़ा सा गौर करें कि क्या यानी हम पूरे पाकिस्तान में एक भी यूनिवर्सिटी में एथिक्स कमेटी नहीं है। इसका क्या मकसद है? इसका क्या मकसद है कि हम जो भी रिसर्च प्रोड्यूस करते हैं वो अनएथिकल होती है, यानी एथिकल कोई स्टैंडर्ड्स हमने फॉलो नहीं किए। ये बहुत बड़ा एक सवाल है रिसर्च के हवाले से कि हमें एथिक्स कमेटी बनानी चाहिए। हमारे PhD प्रपोजल्स, MPhil प्रपोजल्स एथिक्स कमेटी से अप्रूव हो के बाद में उस पर रिसर्च होनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं UK में था और मैं चाह रहा था कि इंटरव्यू कंडक्ट करूं, तो मेरे सुपरवाइज़र ने कहा कि हैव यू गॉट अप्रूवल फ्रॉम एथिक्स कमेटी? तो मैंने कहा नो, देन यू कैन नॉट कंडक्ट योर इंटरव्यू। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट को छोड़ देते हैं जाके वो जो है वो कंडक्ट करे इंटरव्यू, पहले दिन ही जाके वो इंटरव्यू कंडक्ट करे बिना किसी उसका कोई यानी और अनएथिकल। आप देखें हमारे यहाँ इवन मीडिया पे जिस तरह से आपका अनएथिकल स्टाइल में आप इंटरव्यू कंडक्टिंग होती है, उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ हमने एथिक्स ऑफ रिसर्च को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिसर्च में। अनएथिकल रिसर्च जो होती है वो एक ह्यूमनिटी के लिए बहुत नुकसानकार चीज़ है। तो एथिक्स ऑफ रिसर्च बहुत ज़रूरी है उनको एड्रेस करना कि आपकी जो रिसर्च है उसमें एथिक्स को कंसिडर किया गया है कि नहीं, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ रिसर्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें अपने स्टूडेंट्स को सिखाने की ज़रूरत है कि उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और उसमें आप देखें हमारे यहाँ प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा है। वो इसी वजह से है कि हम एथिक्स तो पढ़ाते ही नहीं हैं। हम तो स्टूडेंट को समझाते ही नहीं कि एथिक्स क्या है रिसर्च में, और प्लेजरिज्म हर कोई करता फिरता है और उसको समझता है कि मेरा ये हक है। तो इस वजह से एथिक्स बहुत ज़रूरी है पढ़ाना। और इसमें फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें आप बच्चों के फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनके एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उनकी क्या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए रिसर्चर। आप किसी फर्म में जाके उनके इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि आपके इंटरव्यू कंडक्ट के बाद वहाँ पे लोगों की नौकरियाँ चली जाएं। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उन डेटा को उस तरह से सर्व करें। दूसरा ये भी कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अभी रिसेंटली बल्कि एक केस मेरे पास स्टूडेंट का आया है जिसमें हम अब अपना टॉपिक चेंज करने के तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली कुछ फाइंड आउट, स्टूडेंट को डर लगा कि मुझे जो है वो, उसने मुझे बताया कि अगर मैं रिसर्च करूँगा ये, तो उसके बाद जब वो पब्लिश होगी कुछ, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स। और ये सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑब्वियसली लाइफ से ज़्यादा रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी लाइफ को सिक्योर कर, रिसर्च को के लिए खतरे में जान डालनी नहीं है। और ये आपने वेस्ट में देखा होगा, बहुत से रिसर्च प्रपोजल्स जो है रिजेक्ट होते हैं इस पॉइंट पे कि आप ये कंडक्ट कैसे करेंगे, और वो कहते हैं कि हम इस जगह पे जाएंगे, तो वो कहते हैं इस जगह पे तो सिक्योर आपकी लाइफ नहीं है, आपको हम नहीं जाने देंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, हम तो चले जाते हैं। नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, आप अलाउड नहीं है इस तरह से, वी विल नॉट अलाउ यू। वो इस वजह से कि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सुपरवाइज़र की, इंस्टीट्यूशन की, कि उसकी लाइफ को सिक्योर करना, ऐसी कोई रिसर्च ना हो जिससे उसकी लाइफ थ्रेटन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ कंसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसेंट किस तरह से लेते हैं, बाकायदा उनको बता के इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं, या वैसे ही जिस तरह से हम पाकिस्तान में जुगाड़ लगाते हैं कंसेंट का कि वैसे ही फॉर्म में भाई यार साइन कर दो, क्या मसला है। तो इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और उसमें जो है वो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन और ऑटोनॉमी, कि एक बंदा आ गया उसमें रिसर्च में, उसको फिर राइट है वो रिसर्च आपकी, फॉर एग्जांपल रिसर्च में आपके आ गया, अपने आपको डेटा उसको दे दिया, आपका इंटरव्यू दे दिया, बाद में उसका एहसास हुआ कि यार मेरा ये इंटरव्यू तो मुझे मेरी ज़िंदगी खतरे में डाल सकता है, या मेरी नौकरी जा सकती है, मेरे साथ कुछ हो सकता है, और वो आपको कहता है कि मेरा इंटरव्यू प्लीज़ छोड़ दें, इसको ना डालें अपनी रिसर्च में। तो आपका उसका हक है ये डिसाइड करना कि वो आपके इंटरव्यू को अलाउ करता है या नहीं करता अपने इंटरव्यू को। आपने उसके मानना है, उसकी ऑटोनॉमी उसकी है, आपकी नहीं है।
एज ए रिसर्चर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। अलग से एक टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको भी टच करना चाह रहा था कि हम इसको देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और बात, कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी का मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको क्लियर करता चलूँगा कि ये दो टर्म बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म, दोनों की मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी में क्या फ़र्क है। यहाँ पे वैसे इंटरेक्टिव वो नहीं है, वरना मैं आप सबसे पूछता और फिर उस पर हम बहस करते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का मकसद ये है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे दैट विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल बिटवीन रिसर्चर एंड द इंटरव्यू, और उसको तीसरे बंदे को नहीं बताया जाएगा, सोर्स, अगर आप कॉन्फिडेंशियल उसको रखते हैं। अब ये लाज़मी बात है कि कॉन्फिडेंशियलिटी आप जो है वो उनको इंश्योर करेंगे अपने जो इंटरव्यू है उसको, कि आपकी जो बात होगी वो आएगी ज़रूर मेरी रिसर्च में, लेकिन उसमें आपका नाम नहीं आएगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने ये कहा है। और उसमें फिर उसको किस तरह से आए ये भी इंश्योर करना रिसर्चर ने है, कि वो इस तरह से इंफॉर्मेशन ना दे कि पढ़ने वाला समझ जाए कि ये किसने दी है उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको इन्फॉर्मेशन को इस तरह से देना है कि उसको पता ना चले कि ये किसने दी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल मिली थी, आपने बड़ा क्लियरली लिखा इस तरह से कि पढ़ने वाले को पता चल गया कि ये किसने बताया था और उसकी नौकरी चली गई, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो इस वजह से ये जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट इसको रखना चाहिए। अच्छा, एनोनिमिटी, अब ये भी होता है कि मैंने देखा बहुत से हमारे जो कहते हैं लोग कि वी विल कंडक्ट क्वालिटेटिव इंटरव्यूज एंड आई विल इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी। अब यहाँ पे सेंटेंस में ही गलती हो गई कि मैं कंडक्ट करूँगा फेस टू फेस इंटरव्यूज़ और कॉन्फिडेंशियल भी होंगे और एनोनिमस भी होंगे। वाह भाई वाह, कैसे करोगे तुम? कॉन्फिडेंशियल तो ठीक है, तुम किसी को बताओगे नहीं, एनोनिमस कैसे होंगे? एनोनिमस का तो मकसद ये है कि जो रिसर्चर है उसको भी पता ना हो कि ये बात कहाँ से आई है। तो फेस टू फेस इंटरव्यू तो एनोनिमस हो ही नहीं सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर कर सकते हैं, एनोनिमिटी तो आप कर ही नहीं सकते। वो तो उस सूरत में हो सकती है कि आपका जो है इंटरव्यूई जो है आपके साथ ना बैठा हो, आपने दे दिए हो, अब वो नंबरिंग हो, कोडिंग हो, और फिर उस तरह से उसका हो सकता है। सो ये आप जहन में रखें कि आप जो चीज़ कह रहे हैं वो वाकई वो चीज़ है कि नहीं। एनोनिमिटी तब क्लेम करें जब आपका वाकई एनोनिमस हो। आपका स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि भाई ये तो बात वैसे ही, इसको पता ही नहीं एनोनिमिटी होती क्या है। तो इस वजह से ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी। जी नेक्स्ट चले। अच्छा, अब ये जो सारी हमने बात की उसमें आप देखेंगे कि ये जो दोनों ये सारी चीज़ें रिसर्च पेपर में भी हैं और रिसर्च प्रपोजल में भी सारी की सारी आ सकती हैं। उसमें साइज़ का जो है डिफरेंस है, यानी जो अब रिसर्च प्रपोजल जब थीसिस के लिए लिखते हैं तो आपके पास स्पेस ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें बड़ी डिटेल से आएंगी। लेकिन जब आप रिसर्च पेपर के लिए करते हैं तो रिसर्च पेपर में मैक्सिमम आपको पता है कि रिसर्च पेपर 5000 टू 6000 7000 वर्ड्स की लिमिट आपके पास होती है, उससे ज़्यादा आपके पास नहीं होती स्पेस। तो फिर आप वो बहुत ज़्यादा बड़ा लिटरेचर रिव्यू और वो जो रिसर्च मेथोलॉजी और सारा कुछ इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं कर सकते। तो ये आपने उसकी साइज़ के हवाले से, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें होती ज़रूर हैं, आप देखेंगे उसमें। और उनकी जो सीक्वेंस है वो भी आपके ऊपर है कि आप उसको सीक्वेंस को आगे पीछे उसमें कर सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह देखेंगे टाइटल विद ऑथर्स, नेम, एफिलिएशन, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च क्वेश्चन, थ्योरी, रिसर्च मेथोलॉजी, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये मैंने ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि रिसर्च पेपर लिखा जाएगा तो किस तरह से उसका जो है वो स्ट्रक्चर होगा, ये ताकि आपको पता चले। इसकी साइज़ आपने अपने हिसाब से डिटरमिन करनी है। और बहुत से रिसर्च पेपर में कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल एक ही में मिक्स करके दोनों चीज़ें भी, ये भी आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल रिसर्च मेथोलॉजी में वो जो है वो लिटरेचर रिव्यू भी मिक्स कर देते हैं, या इस तरह से कुछ लोग करते हैं, या इंट्रोडक्शन में विदाउट हेडिंग भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हेडिंग दी जाए, इंट्रोडक्शन में आप विदाउट हेडिंग भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से करते हैं और किस तरह से एड्रेस करते हैं। अभी HEC की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें भी ये हेडिंग्स इस तरह से हैं और वो कहते हैं कि इनको इस तरह से आप करें। और मोस्टली जो एकेडमिक रिसर्च होती है उसमें ये वाली चीज़ें रिक्वायर्ड ज़रूर होती हैं, लेकिन आप उनको किस तरह से कवर करते हैं, हेडिंग देते हैं नहीं देते हैं, दिस इज़ अप टू यू। लेकिन आई वुड से कि जो न्यू रिसर्चर है उसको चाहिए कि वो हेडिंग्स के साथ करे ताकि उसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। जी
नेक्स्ट चलें। अच्छा, रेफरेंसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का, और इसमें एक और टर्मिनोलॉजी का प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफी। बहुत से लोग इसको मिक्स करते हैं, इवन बड़े बड़े स्कॉलर्स मैंने देखा है कि इसको मिक्स करते हैं, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसिंग। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर आते हैं उनके साथ बहुत बहस किया है कि वो कहते हैं कि नहीं ये मंजूर साहब हंस रहे हैं, मंजूर साहब को याद होगा कि हमने बड़े ये बहस भुगते हैं। और वो जो है वो अब बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसिंग, अब देखें रेफरेंसेस का क्या मकसद। रेफरेंसेस यूजुअली कम एट द एंड ऑफ अ टेक्स्ट and should contain only those works cited within the text, so use the term references to cover works। अच्छा, ये रेफरेंसेस का क्या मकसद? रेफरेंसेस का मकसद है कि वो चीज़ें जो कि आपने अपने पेपर में, अपने रिसर्च में साइट की हुई हैं, कोटेड हैं, साइटेशंस जो है सिर्फ वो होंगी, उसमें कोई एडिशनल चीज़ नहीं होगी। रेफरेंस का मकसद ही है जो चीज़ रेफ़र की है वही रेफरेंस लिस्ट में आएगी। जबकि बिब्लियोग्राफी का मकसद ये नहीं है। बिब्लियोग्राफी का क्या मकसद है? बिब्लियोग्राफी इज एनी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस एट द एंड ऑफ अ टेक्स्ट वेदर साइटेड और नॉट। अगर आपने इन्फॉर्मेशन के लिए कोई चीज़ पढ़ी है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि उस टॉपिक से रेलेवेंट है और आप चाहते हैं कि वो भी रीडर को बताई जाए, तो वो बिब्लियोग्राफी में आ सकती है, रेफरेंस लिस्ट में नहीं आ सकती। ये ज़रा डिफरेंस समझिएगा। इस वजह से आप देखते हैं कि जो बुक्स हैं मोस्टली पास्ट में लिखे जाते थे, वहाँ पे बिब्लियोग्राफी ज़्यादा चलती थी। अब आप जो रिसेंट जो आप देखते हैं रिसर्च आर्टिकल्स, उनमें रेफरेंस लिस्ट होती है मोस्ट, इवन पीएचडीज में रेफरेंसेस होते हैं, बिब्लियोग्राफी वर्ड कम यूज़ होता है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी रेफरेंस को ही बिब्लियोग्राफी लिख के चलाते हैं काम को, तो इस तरह से भी काम करते हैं। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रेफरेंसेस जब कह रहे हैं तो वो अलग चीज़ है और बिब्लियोग्राफी की मीनिंग अलग है। ये मीनिंग आपको कम से कम क्लियर होनी चाहिए। जी नेक्स्ट चलें, टाइम हमारे पास है अच्छा जी, अब ये भी क्योंकि रेफरेंसेस, अब रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का मेरे हिसाब से, क्योंकि ये डिफरेंशिएट का, फॉर एग्जाम्पल मैं जब बीएस को पढ़ाता हूँ तो उनको मैं बताता हूँ कि देखें जो आपने अभी तक तो जो किए हैं वो किया है, आपने असाइनमेंट्स किए हैं। असाइनमेंट में भी आप क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट मार के और इधर उधर से इंटरनेट से वो चीज़ें निकाल के और वो जो है वो अपना पेट उसका भरते हैं, या फिर दोस्तों से इधर उधर से लेके आप काम करते हैं। लेकिन वो रिसर्च पेपर नहीं है। रिसर्च पेपर वो तब बनेगा जब उसकी रेफरेंस लिस्ट आएगी। रेफरेंस ही रिसर्च पेपर, रिसर्च को रिसर्च बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रेफरेंस नहीं है तो फिर रिसर्च नहीं है। आप फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर आर्टिकल देख लें, उसमें रेफरेंसेस नहीं होते, इस वजह से उसका स्टेटस रिसर्च पेपर का नहीं होता स्टेटस। तो रिसर्च को रिसर्च बनाने वाला रेफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें बहुत से स्टाइल चलते हैं। आजकल जो ज़्यादा पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में चल रहा है वो एपीए स्टाइल रेफरेंसिंग है। तो हम उसी को जो है वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसका बताऊंगा कि किस तरह से उसको करना चाहिए। बहुत डिटेल्ड है लेकिन हम उसको ब्रीफली, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें हो जाए। जी ये ज़रा आगे चलें। अच्छा, अब एपीए स्टाइल रेफरेंसिंग, उसमें आपने शिकागो स्टाइल और एपीए स्टाइल, दो स्टाइल ज़्यादा चलते हैं। हम एपीए को कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो ज़्यादा चल रहा है वो एपीए ही चल रहा है। अब इसमें ये देखें, टू साइट वर्क्स ऑफ अदर्स, एपीए स्टाइल यूजेस एन ऑथर डेट साइटेशन मेथड, साइटेशन इन टेक्स्ट और एक्नॉलेज विथ ऑथर कॉमा डेट और ऑथर ब्रैकेट में डेट। अब ये थोड़ा सा समझिएगा इसका मकसद क्या है कि ऑथर का जो है वो फैमिली नेम आएगा और डेट मीन्स ईयर आएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। और यहाँ पे ऑथर अगर फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में आ रहा है बीच में, तो फिर ऑथर जो है वो बाहर आएगा, डेट अंदर आएगी ब्रैकेट में। अगर वो आप बताना चाह रहे हैं ऑथर को कि फला फला ऑथर ने ये बुक लिखा, तो वहाँ पे ऑथर जो है वो बाहर आएगा और डेट अंदर आएगी। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे ये भी चीज़ें। तो बहरहाल साइटेशंस में दो चीज़ें, यानी इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि साइटेशन में एक होता है इंटेक्स्ट साइटेशन, दूसरा रेफरेंस लिस्ट। इंटेक्स्ट साइटेशन का मकसद ये है कि जो आपका रिसर्च पेपर है उसके अंदर साइटेशन, उसके आपको पता है कि एक तो पुराना स्टाइल जो होता था उसमें जो है वो नंबरिंग दे के और नीचे वो फुट नोट्स और एंड नोट्स वाला भी चक्कर था। लेकिन एपीए में एंड नोट और फुट नोट का सिस्टम नहीं है। इसमें जो है वो जो इंटेक्स्ट रेफरेंस है वो ऑथर डेट मेथड से होती है, बिल्कुल सिंपल। जिस तरह से ये है कि सेंटेंस के एंड में आपने ऑथर और उसका डेट दे दी,
दैट्स इनफ, आपने पूरा रेफरेंस नहीं, फिर एंड में जाके आपने रेफरेंस लिस्ट बनानी है। तो इन टेक्स्ट रेफरेंस और फिर रेफरेंस लिस्ट। रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ योर असाइनमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फुल बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर ईच सोर्स साइटेड इन द टेक्स्ट। ये रेफरेंसेज हैं तो इस वजह से ईच सोर्स जो कि साइट है उसकी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन देनी है। रेफरेंसेज मस्ट बी लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बाय ऑथर, डेट एंड देन क्रोनोलॉजिकली असेंडिंग ऑर्डर, उसमें उसको चलना है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम आता है जब आप इसमें करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑथर है, उसके मल्टीपल आर्टिकल्स आप कोट कर रहे हैं, फिर आप किस तरह से उसको चलेंगे? उसमें फिर जो ईयर ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से ईयर ऑफ पब्लिकेशन कि असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, कि ये भी कभी कभी होता है कि आपका एक ही ऑथर है और एक ही साल में 3 आर्टिकल और आपने तीनों ही साइड कर दिए, मुसीबत पड़ गई। अब उसको किस तरह से करें? उसमें फिर एक तरीका है कि आप उसको ABC दे सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली, यानी आप खुद से वो कर सकते हैं कि एक आर्टिकल को A दे दें, दूसरे को B दे दें, C दे दें, ताकि वो फिर, क्योंकि इसकी वजह ये है कि आप जब उसको इन टेक्स्ट में देंगे रेफरेंस, तो फिर पता चले ना कि आपने कौन से वाले उन तीनों में से किया है। इस वजह से उसको ABC करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जो रीडर है उसको कन्फ्यूजन होगी कि ये रेफरेंस कौन से में से है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो आपका जो, और इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बहुत ज़रूरी है ताकि वो फिर वहाँ पे जाके उसको ढूंढ सके। तो इस वजह से रेफरेंसिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। जी आगे चलें। अच्छा, ये बुक का विद सिंगल ऑथर ये सबसे कॉमन रेफरेंस है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से उसको, उसके लिए मैंने फिर अपने, क्योंकि मैं BS को पढ़ाता हूँ तो मैं उनके लिए बहुत आसान करके कोशिश करता हूँ कि वो जिस तरह से कैप्सूल बना के दिया जाता है कि वो देखें कि वो ऊपर जो है रेफरेंस दिया गया है, फिर नीचे ऑथर किस तरह से, ऑथर लास्ट नेम इन फुल, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, इट इनिशियल्स, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ द बुक, इटैलिसाइज, साइट, सिटी, नेम, पब्लिशर, ताकि वो फिर समझ भी, ऊपर वाला उसको समझाने के लिए नीचे ये उसका तरीक़ेकार है। और ये फिर उसका एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। जी देख चलें। ये जनरल आर्टिकल है। जनरल आर्टिकल के लिए आप देखते हैं थोड़ी सी तब्दीली उसमें है कि आपकी इटैलिसाइज जो है, वहाँ पे बुक का टाइटल इटैलिसाइज था, यहाँ पे जो आपका जो टाइटल है जनरल आर्टिकल का वो इटैलिसाइज नहीं है, जर्नल का नेम इटैलिसाइज है। ये फ़र्क है। वॉल्यूम और नंबर, पेज नंबर, ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जी नेक्स्ट चलें। हाँ, ये बहुत से और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की किल्लत है, तो मैं आपको सिर्फ ये एक और बहुत मुश्किल चीज़ जो कि इंटरव्यू में मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू को कैसे करें, साइट। अब एन इंटरव्यू इज़ नॉट कंसिडर्ड रिकवरेबल डेटा, सो नो रेफरेंस टू दिस इज़ प्रोवाइडेड इन द रेफरेंस लिस्ट। यू मे हाउएवर साइट द इंटरव्यू विद इन द टेक्स्ट एज ए पर्सनल कम्युनिकेशन। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जो इंटरव्यू है वो उसका सिर्फ इन टेक्स्ट रेफरेंस रिक्वायर्ड है, रेफरेंस लिस्ट में वो डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस तरह से करते हैं जो कि अच्छा है और करना चाहिए मेरे हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपने इन टेक्स्ट रेफरेंस दे दिया इंटरव्यू का, जो कि आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिर एंड में आपने एक लिस्ट बना दी कि 20 इंटरव्यू, 10 इंटरव्यू कितने कंडक्ट किए, उनकी डेटा आपने दे दी, इंटरव्यू कब कंडक्ट किया, उसकी कोई फिक्स रूल क्योंकि बताए नहीं गए, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से बताते हैं। बेसिकली इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि वो इंटरव्यू कब कंडक्ट हुआ, किसका इंटरव्यू था, उसका थोड़ा सा कि वो कौन बंदा था, उसका यानी बैकग्राउंड थोड़ा सा कि वो कोई प्रेसिडेंट है या कोई क्या चीज़ है, कौन सी इदारे में काम करता है, तो वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। वो आपकी चॉइस है, वो आप ना दें फाइन, लेकिन आप अगर देना चाहते हैं तो वेरी गुड। अच्छा, अब लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया है तो आपका जो है वो इन टेक्स्ट रेफरेंस बनेगा। हियर इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर यू शुड यूज़। फर्स्ट इनिशियल, लास्ट नेम, टाइप ऑफ इंटरव्यू, डेट ऑफ इंटरव्यू। अब देखें यहाँ पे जिस तरह से है, आर हीथफील्ड, यानी ये इनिशियल है, हीथफील्ड, पर्सनल कम्युनिकेशन, May 9, 2019, ये ईयर, सजेस्टेड दैट द चेंज इन, ये फिर वो जो उसका बात आ रही है इस तरह से। और अगर बिल्कुल एंड में है तो फिर किस तरह से है, ये भी दोनों डिफरेंट आप देखते हैं, उनका यूज़ इस तरह से उन्होंने किया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि उसका ये रेफरेंसेस भी हमने मेरे ख्याल में कवर कर लिया, हमने तकरीबन सारी चीज़ कवर कर ली है। मेरे ख्याल में ये लास्ट स्लाइड थी, देख लें ज़रा आगे। जी थैंक यू जी।
सो क्वेश्चंस और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई या कोई चीज़ मिसिंग है, कोई और देख लें ये। हाँ जी, पीछे। Well, sir, it was a wonderful session, and we got an opportunity to learn from you. So, basically, while in your discussion part on abstract, there was a frequent mention of attractive. So, while we were taking advanced academic course, our instructor categorically emphasized that an abstract should be structured. It should be an academic it should come in the parameter of academic pattern. So what would you say, our instructor categorically emphasized that it should not be catchy, it should not be that kind of attractive, it shouldn't be any kind of a glorification, rather it should follow an academic parameter. So what would you comment on that part, be it an attractive or should it be an academic part? Okay. I think there's no problem in that. You can make an academic thing attractive as well. I mean, there's no bar on you to make it not catchy. Obviously, academic style should be there, yes. The requirements which are provided to you, like the word limit, you have to follow. It should provide the gist. It should provide basic structure, obviously, yes. But within that, you can make it attractive. Language, verbose shouldn't be there, obviously. But apart from that, attractive means, by attractive basically I mean to say that the person who is reading should understand that whether he or she should go for the full read or just this is not good enough for him or her. So that is why you should give a good, perspective of your article or something which obviously attracts the reader. So that in that sense it was basically. So, like in slide of references, like you mentioned APA references, and there was, and you mentioned it should be, there was city name, there was a city name. So I think in APA 7th edition, there isn't any city name, rather it is only publishers. We mention only publisher, not the city name. Okay, yeah, it is changed always. So 8th edition or 7th edition? 7th edition. So maybe it has been changed. As I remember, it was city name was there, but they might have changed recently. सर मेरा क्वेश्चन है जी कि आपने मेंशन किया था कि अच्छा जो है ना एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे फिर तो हम उस कैटेगरी मतलब क्राइटेरिया क्या है कि ये अच्छा मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, कैसे फाइंड करें उसको? अच्छा एब्स्ट्रैक्ट का मकसद ये है कि आप जानते हैं ना कि अच्छे ऑथर्स कौन से हैं आपकी फील्ड में। हर फील्ड की डिफरेंट फील्ड होती है, तो ऑब्वियसली यू मस्ट नो हु आर द गुड ऑथर्स इन योर फील्ड, और उनके जो है वो पढ़ेंगे जो कि वेल नोन ऑथर्स हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट आपको ज़्यादा एक, क्योंकि कोई फिक्स तो नहीं हो सकता कि मैं आपको बताऊंगी ये वाला अच्छा है या वो वाला अच्छा है, ये डिपेंड करता है। वो आपने लाजमी बात है पढ़ के भी आपको अंदाज़ा होगा कि इसने एब्स्ट्रैक्ट अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा है। सो ऑब्वियसली दैट इज़ अप टू योर चॉइस। जी सही साहब, माय कॉम्प्लीमेंट्स, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मैं भी यूनिवर्सिटी में एकेडमिक जो लैंग्वेज है वो पढ़ाता हूँ, तो उस पर कोई ऐसा मटेरियल ख़ास मिलता नहीं कि कौन से फ्रेजेस हैं, कौन सी लैंग्वेज है जो अवॉइड करनी चाहिए। मतलब एक तो ये कि यूफेमिस्टिक लैंग्वेज यूज़ ना करें, कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ ना करें, और हमारे जो है बहुत सारे जो है पीएचडी स्कॉलर्स भी वो ब्लॉक कोटेशन का कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं होता, और फिर लैंग्वेज की गलतियाँ उसमें होती हैं। तो इसके लिए क्या कोई है ऐसी कुछ चीज़, कोई एक सिंगल कोई चीज़ जो आप स्टूडेंट्स को बता सकें कि जी एकेडमिक लैंग्वेज के लिए यूज़फुल चीज़ है? मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का कोई सच मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा कोई सोर्स जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि लैंग्वेज आपने क्या करनी है। ये तो एक लर्निंग प्रोसेस में मेरे ख्याल में आएगी, जब आप उसको लिखते हैं पढ़ते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आती हैं, एंड यू कैन पिक थिंग्स कि ये वाले वर्ड नहीं होने चाहिए और इस तरह से उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। एडजेक्टिव्स आई सेड बिकॉज एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनको यू कैन नॉट
प्रूव योर दी एडजेक्टिव, उस सेंस में मैंने कहा था कि वो एडजेक्टिव्स को आप अवॉइड करें और वर्बोस को अवॉइड करें, क्योंकि हम जो है वो और जो चीज़ कहें वो ज़्यादा प्रूफ जिसको हम कर सकें, जो कि जस्टिफाइबल हो, वो चीज़ कहें. सो दैट वाज द लिमिट. बट एग्जैक्टली कौन से वर्ड्स को हमें नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल में ये तो फिर वेरी भी करेगा पर्सन टू पर्सन, और वो भी कि चॉइस और फील्ड के हवाले से भी शायद वेरी करेगा कि पॉलिटिकल साइंस में या सोशोलॉजी में, फिर लिटरेचर में डिफरेंट जो है वो. लिटरेचर तो आपको पता है शायरी और ये चीज़ें, तो उसमें तो फिर वो लाजमी होती हैं चीज़ें. तो ये आई थिंक कि डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिफरेंट. मसलन यूफेमिज्म का एक एग्जांपल ये है कि ही पास्ड अवे इन 1979, तो इसके बजाय ही डाइड. यूफेमिस्टिक लैंग्वेज ना यूज करें, डाइड जो डायरेक्ट लैंग्वेज है वो यूज करें. और फिर नवंबर जब आप लिख रहे हैं NOV ना लिखें, पूरा लिखें. जी जी जी, ये बचत ना करें हाँ, कि जी. स्पेस बच जाएगी. जी. थैंक यू सर, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर की. एक क्वेश्चन आईड लाइक टू आस्क, यू मेंशन रेफरेंसिंग, और रेफरेंसिंग वेयर लाइक एन ऑथर हैज़ मैनी पब्लिकेशंस इन द सेम ईयर, और ये मेंशन किया गया कि व्हेन यू राइट इन साइटेशन भी है और या रेफरेंसिंग है, उसमें आप जो है लेटर्स के थ्रू जो है वो उसको डिफ्रेंशिएट कर दें. तो अगर इन साइटेशन होगी, वेयर डू यू प्लेस द लेटर, इनसाइड द ब्रैकेट, आउटसाइड द ब्रैकेट, और जो है वो नीचे रेफरेंसिंग लिस्ट में वो लेटर्स जो है कहाँ प्लेसमेंट उसकी कहाँ पर होगी? अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने ऑथर का नेम दिया, उसमें ही उसके साथ A या B रख सकते हैं, आप लगा सकते हैं. जी, फॉर एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल इनसाइड. अगर हाँ इनसाइड पे नहीं है तो फिर आप उसके साथ जो है वो फिर भी आपने लगाना तो है कहीं ना कहीं पे. हाँ हाँ, इस वजह से उसको छोटा करके साइड पे लगाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल साथ में अगर बड़ा होगा तो फिर तो प्रॉब्लम करेगा. बिल्कुल वो छोटा सा साइड में, ताकि वो पता हो कि वो. मुझे याद है कि वो, हाँ उसमें यही है कि यू कैन बेसिकली जो यानी जिस तरह से वो क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल नेम लिख लिया आपने, लास्ट नेम लिखा, तो उसके साइड पे बिल्कुल, हाँ वो नीचे आएगा, वो ऊपर नहीं आएगा. हाँ हाँ. सही साहब, पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन के बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने मुश्किल जो ये सब्जेक्ट है उसको बच्चों तक पहुंचाया और एग्जांपल्स के साथ. मेरा सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर, उनको RM के वार से कोई अच्छी एकेडमिक या अच्छी किताब, ताकि वो अगर लेक्चर्स से नहीं, अगर किताब के ज़रिए RM को समझ सकें, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसमें ये देखें, ये मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी एक किताब का नाम लूँ और फिर पब्लिशर्स भी कोई दूसरे नाराज़ हो जाएं कि हमारी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, उस वजह से मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा. लेकिन ये है कि आजकल तो बहुत से सोर्सेज अवेलेबल हैं, और इवन आपको इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं. सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं बहुत से बुक्स, और उसमें पब्लिशर मैटर करता है कि अच्छा पब्लिशर है तो, और राइटर्स हैं, तो इस तरह से. हाँ हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मैं ऑथर का किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये फिर वो एक दूसरा प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा. जी, और कोई क्वेश्चन है? नहीं. थैंक यू जी, थैंक यू.